I'm Dr. Roshli from the medical team of USV, and I welcome everybody for this another episode of CME India. And today's topic of discussion will be on thyrotoxicosis. And it's my absolute pleasure to welcome the person behind the CME India group, no one other than Dr. N.K. Singh, sir. He's the Director, Diabetes and Heart Research Center, Dhanbad, Executive Member, National RSSDI, has been the editor of Millennium Book of Medicine, having numerous publications to his credit. Yeah, you can bypass now. Yeah, Arfil, you proceed. CME Yeah. India Group. So, yes, Yeah. so I welcome you, sir, on behalf of the team, and over to you for the further proceedings. Good evening to all our CM India viewers. Today, I have great pleasure that something new experiment we are going to do in this our group. This could be could be a very mind-boggling episode today that our speaker will be using a bilingual, basically in Hindi, he will be going to tell you or about this very exciting topic. So with that, can you give the CV PPT of our today's moderators? Give me for the moderators. Next. I have great pleasure today in introducing Dr. Hitesh Saraogi. He is a metabolic physician and diabetologist with interest in endocrine disorders at Ghaziabad, MD, MRCP, Endocrinology and Diabetes, Fellow of American College of Physicians, a SCOPE certified obesity specialist. He is also Fellow of Diabetes India, and he has published so many articles in index journals. So welcome, Dr. Hitesh. Next. Thank you, sir. I have great pleasure in also welcoming Dr. Anil Kumar Kulshrestha. He is the MD Medicine, and I think all of API persons know him very well. Practicing consultant physician and metabolic physician for last 38 years, and managing director at Anubhai Medical and Gynec Hospital at Thaltej, Ahmedabad, Fellow of Indian College of Physicians, Fellow of Indian College of Clinical Medicine, past Secretary and President of API Gujarat. He is Chairman of Association of Clinical Medicine Gujarat Chapter. So with his credit, next. Also great pleasure in inviting today that Dr. Chandan Sharma is here from MD, Senior Consultant Physician from Tinsukia, Assam, Chairman API Tinsukia branch, and best undergraduate student with honors in medicine and best postgraduate student in medicine, Assam Medical College, Dibrugarh. 12 publications in medicine update. And with that, can you go for the next? We have also got today Akash Singh will be joining. He is well known to you all, so I will not go in detail. And also Dr. Patni, next. He is also well known. Can you give the next one? Dr. Akash is well known to our viewers. That is senior consultant at Gujarat, Vadodara. Yeah, next. Yeah, Dr. Vijay Patni, he will be joining. He is HOD Diabetes Wellness Clinic, Kolkata, and research contributed articles, many chapters, including independent studies in journals and books. So I think you are well aware. So I now request Dr. Hitesh to tell something about the speaker. Can you, technical team, give the CV PPT of Dr. Pankaj? Yeah, Hitesh. Good evening, everyone. Thank you, Dr. N.K. Singh, sir, for giving me this opportunity. I'd like to introduce my mentor, my guru, Dr. Pankaj Kumar Agarwal, sir. He's a senior endocrinologist at Hormone Care and Research Center, Ghaziabad. He is the founder of Medical Concepts in Hindi, an initiative dedicated to simplifying modern medical science in easy and accessible Hindi. हिंदी सर का एक पैशन है. हिंदी में सर ने हम लोगों को बहुत सिखाया और सर इसी भाषा में आज हम लोगों को थायरोटॉक्सिकोसिस के बारे में बताएंगे. Sir is also an author for MCH Manual of Clinical Diabetes, Thyroid Disorder, and Blood and Lymphatic Sizing. He is also editor-in-chief, Journal of Medical Concepts in Hindi, and he's authored various national and international research papers. And he's been principal investigator of more than 30 international and 5 national research projects. Sir, over to you, sir. धन्यवाद डॉक्टर सिंह, धन्यवाद हितेश इस फोरम पे मुझे बुलाने के लिए और ये अवसर देने के लिए. सीएमई इंडिया एक ऐसा ग्रुप है जिसमें मैं देखता हूं कि कितना रिगरस एक्टिविटीज होती रहती हैं और ठीक है, दुर्भाग्यवश मैं इनको सबको देख तो नहीं पाता, मैं बहुत ज्यादा उसमें सक्रिय रूप से भाग नहीं ले पाता,
लेकिन ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण इनिशिएटिव है डॉक्टर सिंह का, और हम सब इससे लाभान्वित होते ही रहते हैं। आज जो टॉपिक आपने मुझसे कहा है कवर करने को, ये मेरा बड़ा प्रिय टॉपिक है, थायरोटॉक्सिकोसिस। और जैसा कि आपने उसमें एक कैप्शन लगा के भेजा, मेड इजी, तो मैं पूरा प्रयास करूंगा कि मैं इसको आसान से आसान बना सकूं, और इसको जितना क्लिनिकल इसका रिलेवेंस है हम उसको ही इसमें डिस्कस करेंगे, और कुछ क्लिनिकल केसेस के माध्यम से। मेरा श्रोताओं से ये निवेदन है कि एक पेपर रखें और एक पेन ले लें, और जो हम लोग के ये क्वेश्चंस हैं इसमें आप अपने स्वयं एबीसीडी इनका एक अपने आप का एवोल्यूशन के लिए वो करते रहें। इन क्लिनिकल केसेस के माध्यम से ही हम आगे बढ़ते जाएंगे। अगर ये केस हमारे सामने आए, हमारी ओपीडी में रोज इस तरह के केसेस रहते हैं, तो इसमें हम क्या करना चाहेंगे? ABCD अपने थोड़ा सा समय हम लोग जब लेते हैं इन प्रोग्राम्स को करने में, तो हम उसको पोलिंग कराते हैं, आपसे आंसर से इनवाइट करते हैं। लेकिन आज इस फोरम में आप अपना इवोल्यूशन स्वयं करें, और यदि आप हमसे कहें कि इसका उत्तर क्या है, तो मैं कहूँगा चलो इसको फॉलो करते हैं। जैसा कि बड़ा कॉमनली सोचा जाता है कि इस तरह के केस की T3 T4 हाई है और TSH कम है, इसका मतलब थायरोटॉक्सिकोसिस है, और उसमें हम एंटी थायराइड ड्रग्स देंगे। इस केस को एंटी थायराइड ड्रग्स दी गई, और 2 महीने बाद जब ये हमें दिखाने आए तो हम देख रहे हैं T3 T4 कम हो गए और TSH बढ़ गया। क्या हम अब अपने डायग्नोसिस में कुछ या अपने ट्रीटमेंट में कुछ बदलाव लाना चाहेंगे? वास्तव में ये जो कंडीशंस हैं जो अक्सर हम लोग इससे रूबरू होते रहते हैं, तो इसका कारण क्या हो सकता है? अगर मैं आपसे फिर से पूछूं, डायग्नोसिस सही नहीं थी, मेडिकेशन सही नहीं था, ज्यादा डोज दे दी गई होंगी, या कुछ और है? वास्तव में इसका जो उत्तर है वो यही है कि डायग्नोसिस सही नहीं थी और ट्रीटमेंट उसके अनुसार उपयुक्त नहीं था। अब यहाँ पे सुनने वाला, देखने वाला यही कहेगा, भाई इसमें तो यार कुछ समझ में नहीं आया, डायग्नोसिस सही क्यों नहीं थी? T3 T4 क्लियर कट एलिवेटेड, TSH सप्रेस्ड, तो डायग्नोसिस में गलती कहां थी? तो बेसिकली यह जब सब कुछ चीज ऐसी लग रही है, यहां पे हमें ध्यान रखना है, यह केस हाइपोथायराइडिज्म का नहीं है। हाइपोथायराइडिज्म में हमारा एक ही ट्रीटमेंट है, एक ही कंडीशन है और एक ही ट्रीटमेंट है, थायरोक्सिन। यह है थायरोटॉक्सिकोसिस का केस। थायरोटॉक्सिकोसिस अर्थात थायराइड हार्मोन्स ज्यादा है, और यह 2 तरह की सिचुएशंस हो सकती हैं। थायराइड हार्मोन ज्यादा है लेकिन वो शरीर में बन रहे हैं, ज्यादा बन रहा है, आवश्यकता से अधिक हो रहा है, या इसका कारण कुछ और था। तो 2 नाम अलग हो गए, थायरोटॉक्सिकोसिस और हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म वो कंडीशन हुई जहां पे हार्मोन बॉडी ज्यादा बना रही है, थायराइड ग्लैंड हाइपर एक्टिव है और उसे सप्रेस करने की कंडीशन आवश्यकता है। लेकिन थायरोटॉक्सिकोसिस किसी भी कारण से शरीर ज्यादा हार्मोन बना रहा है या नहीं बना रहा, बाहर से थायरोक्सिन की पूरी शीशी खाली है, ऐसे में क्या होगा? थायरोटॉक्सिकोसिस होगी, लेकिन हाइपरथायराइडिज्म नहीं होगा। कहीं और से थायराइड बनने लगा, जैसा स्ट्रूमा ओवेरियाई हम लोग अपने अंडर ग्रेजुएट डेज में पढ़ते हुए आ रहे हैं, ओवेरियन ट्यूबर्स में बनने लग गया, वहां पे थायरोटॉक्सिकोसिस होगी लेकिन हाइपरथायराइडिज्म नहीं होगी, थायराइड ग्लैंड एक्टिव नहीं है। यही हमको समझना है, और यही क्रक्स है आज के इस प्रेजेंटेशन का जो डॉक्टर सिंह ने रखवाया है, कि ऑल थायरोटॉक्सिकोसिस पेशेंट्स आर नॉट अलाइक, सम ऑफ देम दे बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ हाइपरथायराइडिज्म where they require therapy to suppress thyroid gland, whereas others do not. हमारे थायराइड कहां से आ सकता है? जैसे हम लोगों ने बात की कि इंक्रीज्ड थायराइड हार्मोन लेवल, या तो थायराइड हार्मोन सिंथेसिस बढ़ी हुई है या नहीं। थायराइड हार्मोन सिंथेसिस बढ़ी हुई है तभी हम उसे हाइपरथायराइडिज्म कहेंगे, अन्यथा वह थायरोटॉक्सिकोसिस हुई, हाइपरथायराइडिज्म नहीं। अगर उसको हाइपरथायराइडिज्म है तब तो हम एंटी थायराइड ड्रग देंगे थायराइड ग्लैंड को सप्रेस करने के लिए। लेकिन यदि उसको हाइपरथायराइडिज्म है ही नहीं, थायराइड ग्लैंड आई कहीं, थायराइड हार्मोन आया कहीं बाहर से, उस केस में हम उसे एंटी थायराइड ड्रग्स नहीं देंगे। और यही एक फेलिसी थी इस
केस में हमने यह नहीं देखने की का कोई प्रयास किया कि इसको थायराइड हार्मोन ज्यादा बन रहा है या कहीं बाहर से आया है। हमने देखा T3T4 हाई, TSH कब, हमने उसको एंटी थायराइड ड्रग दे दी। यही गलती हमको नहीं करनी। हो सकता है ओवरडोज ऑफ थायरोक्सिन के कारण से हुआ हो, हमने पूछा नहीं, हमने देखा नहीं। हो सकता है थायराइड ग्लैंड में जो स्टोर्ड हार्मोन था वो लीक कर गया, थायरोइडाइटिस, जो कि आज के युग में बहुत ज्यादा मिलने लग गई है। क्यों? क्योंकि जब से आयोडिनेशन ऑफ सॉल्ट आरंभ हुआ है, हमारी जो इम्यूनोलॉजिकली जो मॉड्यूलेटेड जो पेशेंट्स थे जिनमें थायराइड ऑटोइम्यूनिटी ज्यादा थी, वो इस आयोडीन को लेके और इसके कारण से उनमें ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स बढ़ गए। ऐसे केसेस में जब थायराइडाइटिस की हमारी प्रेवलेंस बढ़ने लगी आयोडीनेशन ऑफ सॉल्ट के कारण से, तो अब हमें ये केसेस काफी नजर आते हैं जहां पे पेशेंट थायराइड टॉक्सिकोसिस के साथ आता है, जिसमें थायराइड ग्लैंड में जो हार्मोन्स स्टोर थे वो बाहर लीक कर गए, या जैसे कि हमने बात की कहीं और से आ रहा है, जैसे ओवरीज में स्टोर हो गया इससे। ऐसी कंडीशन में जब थायराइड हार्मोन बाहर से हमारी बॉडी को मिल रहा है तो उसमें हमें एंटी थायराइड ड्रग्स नहीं देनी। अब कैसे डिस्टिंग्विश करें, यह बहुत आवश्यक है। जब भी हमारा पेशेंट थायराइड टॉक्सिकोसिस के साथ आ रहा है तो हमें यह देखना है कि क्या क्या क्लिनिकल फैक्टर्स हैं जो हमें डिस्टिंग्विश करने में मदद कर सकते हैं। एक, ड्यूरेशन अधिकतर ऐसे केसेस की शॉर्ट होती है। अमूमन हिस्ट्री मिलती है हमको कि एक फीवर हुआ था, गला खराब हुआ था, थायराइड ग्लैंड नेक रीजन में पेन था, और उसके बाद फिर हमें प्रॉब्लम शुरू हुई, बड़ी रेस्टलेसनेस रहने लगी, ट्रेमर्स होने लगे, पैल्पिटेशन होने लगा, वेट घटने लगा, फीवरिश फील करने लगे, और हो सकता है बहुत माइल्ड सिम्टम्स हो, केवल फीवर और पेन ही प्रेडोमिनेंट। ऐसे केसेस में हमें थायराइडाइटिस सस्पेक्ट करनी है। और इसके अलावा बाहर से दवा ले ली तो या तो हमें हिस्ट्री में देगी या मिलिंगरिंग हो सकता है, या पेशेंट एक्सेप्ट ना कर रहा उस चीज को, तब हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स हमको नहीं मिलेंगे और ये सारे फीचर्स होंगे। तो वास्तव में थायराइडाइटिस में होता क्या है, जो थायराइड फॉलिकुलर एपिथेलियम है ये, जिसके अंदर थायराइड हार्मोन्स स्टोर्ड है, ये एपिथेलियम कहीं से क्रैक किया, उसमें इंफ्लेमेटरी डिसऑर्डर हुआ, जिससे कि उसकी इंटीग्रिटी खत्म हुई, और उस इंटीग्रिटी के कम हो जाने के कारण से उसमें स्टोर्ड हार्मोन लीक कर गया। तो अगर नीचे वाले कर्व में देखें तो नॉर्मल प्रेजेंटेशन तो यही रहता है कि देयर इज अ हाइपर फेज फॉर सम टाइम, लेकिन ये हाइपर फेज कई बार आगे चल के हाइपोथायराइडिज्म की फेज में चली जाती है, जो कि पुनः ट्रांजिएंट हो सकती है, रिकवर करके नॉर्मल हो जाए, या लॉन्ग लास्टिंग हो सकती है। तो हाइपरथायराइडिज्म, थायराइड टॉक्सिकोसिस फॉलोड बाय हाइपोथायराइडिज्म within 1 to 3 months of illness, यह एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है थायराइडाइटिस का। तो यदि आप देखें कि हमने एंटी थायराइड ट्रीटमेंट आरंभ किया और पेशेंट 1, 2, 3 महीने के अंदर हाइपोथायराइड हो गया, तो अपनी डायग्नोसिस को रिव्यू कीजिए, क्योंकि ग्रेव्स डिजीज का पेशेंट 1, 2, 3 महीने में यूजुअली हाइपोथायराइड नहीं होता, इसमें लगते हैं 6, 7, 8 महीने, साल भर। तो अगर हमारा पेशेंट बहुत जल्दी हाइपोथायराइडिज्म में जा रहा है, तब यह एक मार्कर हो सकता है, एक क्लिनिकल सस्पिशन अराइज होना चाहिए कि थायराइडाइटिस हो सकती है। और इस ऐसे केसेस में यदि हम ESR, यदि हम CRP इन पे निगाह डालते हैं तो यह हमें बढ़े हुए मिल सकते हैं, यह हमको पहले करना चाहिए था। एक और काम जो हमें पहले किया जा सकता था, T3T4 रेशियो देखिए। अच्छा, ये थ्योरेटिकली तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रैक्टिकली हमको हमेशा नहीं मिलता कि अगर T3 हमारा ज्यादा है, T3 हमारा वास्तव में ग्लैंड से सिक्रीट नहीं होता, वो हमारा कन्वर्ट होता T4 से T3 में। तो यूजुअली T4 हमारा ज्यादा होता है जो T3 में कन्वर्ट होता है, लेकिन अगर ग्लैंड से लीक कर रहा है उसमें स्टोर्ड हार्मोन, तब T3 की कंसंट्रेशन भी काफी होती है। अगर यह रेशियो हमारा डिस्टर्ब हो तो यह एक बार इस बात का द्योतक हो सकता है कि वह थायराइडाइटिस है। अब यह जो एक पेशेंट अगर हम लेके चलें, दूसरा पेशेंट 34 ईयर ओल्ड फीमेल जनरलाइज वीकनेस के साथ आई, हमने देखा T4 हाई है और TSH लो है।
हमने कहा थायराइडिटिस हो सकती है, हमने इसकी एंटी टीपी एंटीबॉडी कराई, वो पॉजिटिव आई। अब आप क्या कहते हैं? अब आपकी ओपिनियन क्या है, ए, बी या सी? अब यह सोचने वाली बात है। थायराइडिटिस हमें रूल आउट करनी है। यहां पे हमने सोचा कि हम पहले थायराइडिटिस रूल आउट करेंगे, हम देखेंगे कि हाइपरथायराइडिज्म या थायराइडिटिस है। ऐसे केस में जब एंटीबॉडी पॉजिटिव है तो हम अक्सर ये मान के चलते हैं कि यह थायराइडिटिस होगी। लेकिन मित्रों, यह फिर एक गच्चा है। एंटीबॉडीज बहुत कॉमन है, एंटीबॉडीज एक अच्छा मार्कर नहीं है। एंटीबॉडीज के बेसिस पे हमें थायराइडिटिस डायग्नोज नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? क्योंकि हमारे अधिकांश केसेस में हम देखते हैं बहुत वीक ये फैक्टर है। इसीलिए मैं कहता हूं कि एंटी टीपी एंटीबॉडीज का हम मिसयूज ज्यादा करते हैं बनिस्बत की इसको क्लियर कट यूज करने की। अगर ये पॉजिटिव है तो सिर्फ हमें एक ये बात मालूम पड़ती है कि यह हमारी थायराइड की कंडीशन हो सकती है, ये सेंट्रल हाइपोथायराइडिज्म नहीं है। यह कहीं बाहर से उत्पन्न होने वाली कंडीशन जैसे कि सिक यूथायराइड सिंड्रोम, वो नहीं है। यह थायराइड की कोई कंडीशन है, लेकिन वो कंडीशन क्या है ये नहीं मालूम। क्योंकि आप देखिए नॉर्मल इंडिविजुअल्स में भी कितने हाई प्रिविलेंस है एंटीबॉडी मिलने की। अगर किसी को यूथायराइड गॉइटर है उसमें भी ज्यादा है, इसके अलावा ग्रेव्स डिजीज में भी ज्यादा है और ऑटोइम्यून हाइपोथायराइडिज्म में भी ज्यादा है। तो एंटीबॉडी से हमें डायग्नोसिस नहीं बनानी, यह एक दूसरा बिंदु है जो ध्यान में रखना है। यदि हम अपनी डायग्नोसिस को कंफर्म करना चाहते हैं तो हमारे पास सबसे अच्छा तरीका है कि रेडियो न्यूक्लियाइड स्कैन कराएं। वह रेडियो न्यूक्लियाइड स्कैन, दूध का दूध पानी का पानी। यहां पे 5 फिगर्स दिख रही है। यह एक नॉर्मल फिगर है रेडियो न्यूक्लियाइड स्कैन में, जिसमें हम देख रहे हैं ये सलाइवरी ग्लैंड्स दिख रही हैं और यहां पे थायराइड ग्लैंड है जो कि बहुत फेंट सी हमें दिख रही है। अगर यही थायराइड ग्लैंड हमारी प्रोमिनेंट हो जाए और सलाइवरी ग्लैंड ना दिखे, सलाइवरी ग्लैंड से ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाए, तब यह इस बात की कंडीशन होती है कि यह डिफ्यूज पूरी ग्लैंड एनलार्ज है, ग्रेव्स डिजीज हो सकती है। इसका एक पार्ट एनलार्ज है, थायराइड नोड्यूल, टॉक्सिक थायराइड नोड्यूल हो सकता है। पैची पूरी ग्लैंड में हमें कहीं इंक्रीज अपटेक दिखे, कहीं रिड्यूस्ड अपटेक दिखे, ये टॉक्सिक मल्टी नोडुलर गॉइटर हो सकता है। और पूरी ग्लैंड ही ना दिखे और पेशेंट टॉक्सिक है, तब यह थायराइडाइटिस है। क्यों? क्योंकि थायराइडाइटिस में थायराइड फॉलिकुलर एपिथेलियम का इन्फ्लेमेशन है और उस इन्फ्लेमेशन के कारण से वह उसकी सारी जो फंक्शनिंग है कि वो आयोडीन को अपटेक करे, उसमें थायराइड हार्मोन सिंथेसाइज कराए, फिर उसको रिलीज करे, यह बाधित हो जाता है। तो अगर ग्लैंड हमको नहीं दिख रही तब वो थायराइडाइटिस है। और ऐसे केस में जब थायराइड ग्लैंड हाइपर एक्टिव है ही नहीं, तब हमें एंटीथायराइड ड्रग्स नहीं देनी। एंटीथायराइड ड्रग्स इन 3 केसेस में देनी है, चाहे ग्रेव्स डिजीज में, चाहे टॉक्सिक नोड्यूल में, या टॉक्सिक मल्टी नोडुलर गॉइटर में। तो इसके लिए आवश्यक क्या हुआ? जब हमको पहचानना हो तो हम पेशेंट को इन्वेस्टिगेट करने से पहले उसको एग्जामिन करें। एक बात तो यह भाई, अगर रेडियो न्यूक्लियाइड स्कैन नहीं है और जैसा हम लोगों ने केस जो डिस्कस किया कि ट्रीटमेंट दिया और पेशेंट हाइपोथायराइड हो गया, इतनी जल्दी 1-2-3 महीने में थायराइडाइटिस की संभावना ज्यादा है। लेकिन अगर पेशेंट हमारा 1-2 महीने बाद हम देख रहे हैं उसके थायराइड हार्मोन लेवल घटते जा रहे हैं, विदाउट ट्रीटमेंट घटते जा रहे हैं, फिर एक संभावना हो सकती है कि थायराइडाइटिस। इसीलिए जो केसेस स्कैन नहीं करा पाते वहां पे कभी कभी हम लोग माइल्डली टॉक्सिक केसेस में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देके बीटा ब्लॉकर्स, एंजियोलिटिक्स, हम कहते हैं चलिए आप स्कैन नहीं करा सकते तो 1 महीने बाद हम देखते हैं कि T4 लेवल हमारा वैसे ही है या फॉल किया। यदि फॉल किया, थायराइडाइटिस की संभावना ज्यादा हो जाएगी। तो जहां पे हम रेडियो न्यूक्लियाइड स्कैन नहीं कर पा रहे हैं वहां पे एक यह काम किया जा सकता है। हालांकि इसमें एक प्रॉब्लम आएगी कि जो पेशेंट्स हमारे ग्रेव्स डिजीज के होंगे, जो टॉक्सिक होंगे, वह 1 महीना छूट जाएंगे ट्रीटमेंट से, थोड़ा सा तो प्रोग्रेशन उनका होगा ही। इसलिए थायरोटॉक्सिकोसिस को हमें आइडेंटिफाई करना है कि इसमें हाइपरथायराइडिज्म था या नहीं था। यदि हाइपरथायराइडिज्म था तो उसमें भी क्या हो सकता है, इतना सीवियर हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है कि पेशेंट थायरोटॉक्सिक क्राइसिस में आए, आईसीयू में मिले, या इतना माइल्ड हो सकता है
कि T3 T4 लेवल्स ही ना बढ़े हो, केवल TSH सप्रेस्ड हो। जैसे हम लोग सब क्लिनिकल हाइपोथायरायडिज्म देखते हैं, सब क्लिनिकल हाइपोथायरायडिज्म क्या होता है, T3 T4 नॉर्मल होता है, TSH माइल्डली एलिवेटेड होता है। उसी तरह से सब क्लिनिकल हाइपरथायरायडिज्म की स्टेज में हो। अगर हाइपरथायरायडिज्म है तो हमें आइडेंटिफाई करना है उसका कारण क्या, जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किए 3 प्रकार के। हमने पैल्पेट की ग्लैंड, यदि पूरी ग्लैंड एनलार्ज मिल रही है, डिफ्यूज है, सॉफ्ट है, स्मूथ है, तो इट गोज इन फेवर ऑफ ग्रेव्स डिजीज। एक जगह एक नोड्यूल मिल रहा है, सॉलिटरी नोड्यूल, बड़ी ग्लैंड है, मल्टीपल नोड्यूल्स मिल रहे हैं, तो वह टॉक्सिक मल्टीनोडुलर गोइटर। तो इस तरह से हम क्लिनिकली एक एज्यूम कर सकते हैं, एजम्पशन, एक क्लिनिकल एजम्पशन बनता है हमारा कि इन तीनों में से कारण क्या हो। अगर डिफ्यूजली एनलार्ज ग्लैंड के साथ आई साइंस भी मिल जाए, अगर इनके साथ प्रीटिबियल मिक्सिडमा भी मिल जाए, देन इट बिकम्स पैथोग्नोमोनिक ऑफ ग्रेव्स डिजीज। तो यह हाइपरथायरायडिज्म में हम क्लिनिकली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि यह किस प्रकार का है। ग्रेव्स डिजीज यूजुअली लॉन्ग ड्यूरेशन की होती है, टॉक्सिक मल्टीनोडुलर गोइटर बहुत ही लॉन्ग ड्यूरेशन का होता है, और टॉक्सिक नोड्यूल कहीं भी हो सकता है इसमें, जिसमें थायरोटॉक्सिकोसिस की सीवियरिटी तो बड़ा वेग से सिम्टम है। एक्सोफ्थेल्मोस एक स्पेसिफिक फीचर है ग्रेव्स डिजीज का, और इसके अलावा ग्लैंड के पैल्पेशन में। तो इस प्रकार से यदि हमें हाइपरथायरायडिज्म की डायग्नोसिस बनानी है तो हमारे ये 5 पहलू बहुत जरूरी हैं, और यह आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए कि यह हमारे बहुत काम की बातें हैं। सबसे पहले तो हम ये कंफर्म करें पेशेंट को थायरोटॉक्सिकोसिस है क्या। टिपिकली वही कि पैल्पिटेशन, ट्रेमर्स, टैकीकार्डिया, और उसके साथ हमने देखा कि थोड़ा हीट इंटॉलरेंस, वार्मथ ज्यादा है, हो सकती है। अब हमने उसको इन्वेस्टिगेट कराया, देखा T3 T4 हाई है, TSH कम है, थायरोटॉक्सिकोसिस हो सकती है। लेकिन हाइपरथायरायडिज्म है क्या? तो कॉज ऑफ थायरोटॉक्सिकोसिस देखने के लिए संभव हो तो हम उसका रेडियोन्यूक्लाइड स्कैन कराएं। यदि नहीं संभव हो पा रहा है तब वहां पे दिक्कत है, जैसा हम लोगों ने 1-2 क्लिनिकल सिनेरियोस डिस्कस किए, उस तरह से काम कर सकते हैं। और अंत में जो हमारा कॉज निकल के आया, थायरोइडाइटिस या ग्रेव्स या सॉलिटरी टॉक्सिक नोड्यूल या टॉक्सिक मल्टीनोडुलर गोइटर, उसके अनुसार हम उसका ट्रीटमेंट हम डिसाइड करें कि यह हमें क्या करना है। अब ये डीडी किस लिए इंपॉर्टेंट है? डीडी केवल एकेडमिक रीजंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, डीडी इनकी प्रोग्नोसिस और इनकी थेरेपी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ग्रेव्स डिजीज में हमें ध्यान में रखना है, ये एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जो रेमिशन में जा सकता है, जबकि बाकी दोनों हैं वो ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो रेमिशन में नहीं जाते। तो यदि पेशेंट हमारा टॉक्सिक मल्टीनोडुलर गोइटर का आ रहा है, उसमें हमें ड्रग देना है थेरेपी, तो थेरेपी संभवतः लाइफ लॉन्ग होगी। सॉलिटरी टॉक्सिक नोड्यूल का भी आ रहा है, तो वह भी सॉलिटरी टॉक्सिक नोड्यूल्स को हम रेमिशन में नहीं ले जा पाएंगे। ग्रेव्स डिजीज अगर है तब वह मेडिसिन बंद हो सकती है कुछ समय के बाद। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्रेव्स डिजीज के पेशेंट में मेनली ट्रीटमेंट मेडिकल, जबकि बाकी दोनों में मेडिकल थेरेपी केवल टेम्परेरी, ट्रांसिएंट, जब तक देंगे तब तक ही लाभ देगी। हमें बाकी ट्रीटमेंट्स पे, सर्जिकल या रेडियो आयोडीन पे भी जाना पड़ सकता है। अब अगर पूछा जाए ग्रेव्स डिजीज है जिसमें 3 फीचर्स हैं, अब इनमें किस टेस्ट की सबसे ज्यादा जरूरी है? उसको थायरोटॉक्सिकोसिस भी है, उसका डिफ्यूजली एनलार्ज्ड गोइटर भी है, और ग्रेव्स ऑप्थेल्मोपैथी भी है। हमें कौन सा टेस्ट कराना है जिससे कि हम कहें कि यह क्लियर हो जाएगा कि ग्रेव्स डिजीज है या नहीं? तो फिर यहां पे ध्यान रखना है, अगर ऑप्थेल्मोपैथी है तब वो ग्रेव्स डिजीज की पैथोग्नोमोनिक होती है, हमें किसी टेस्ट कराने की आवश्यकता नहीं। इन्वेस्टिगेशंस की अगर हम बात करें, एंटीटीपीओ तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एंटीटीपीओ एंटीबॉडीज बहुत वेग होती हैं, प्रिसीजन नहीं होता है, स्पेसिफिसिटी नहीं होती, उसको नहीं कराना। लेकिन अगर एंटी टीएसएच रिसेप्टर एंटीबॉडी है, ये पैथोग्नोमोनिक होती हैं, अगर ये हैं तो फिर पेशेंट को ग्रेव्स डिजीज है। अगर रेडियो
आयोडीन स्कैन में, टेक्नीशियम स्कैन में हाइपर फंक्शनिंग एनलार्ज थायराइड है, तब ये पैथोग्नोमोनिक होता है। लेकिन ग्रेव्स ऑप्थेल्मोपैथी अपने आप में पैथोग्नोमोनिक है। अब प्रश्न ये आता है ग्रेव्स ऑप्थेल्मोपैथी क्या है? ये दो पेशेंट्स हैं, ए और बी। इसमें किसको ग्रेव्स ऑप्थेल्मोपैथी? ध्यान रहे कि केस ए को हम देख रहे हैं यूनिलैटरल है, बाइलैटरल नहीं है, यूनिलैटरल प्रोप्टोसिस है, पैल्पेब्रल फिशर बड़ा है लेकिन आई में बल्जिंग भी नहीं है। और जैसा बी में देख रहे हैं आप, पेरी ऑर्बिट, ये जो लिड्स की स्वेलिंग, और यहां अगर हम हो सकता है किसी और फिल्म में क्लियर हो कि कंजक्टाइवा में भी कंजक्टाइवल इडिमा देखने को मिले। अगर लिड्स इडिमेटस है और आईज में एक्सोफ्थल्मोस है, तब ये पैथोग्नोमोनिक है ग्रेव्स डिजीज की। प्रोप्टोसिस पैथोग्नोमोनिक नहीं है। प्रोप्टोसिस तो किसी भी कारण से हो सकती है, तो प्रोप्टोसिस को भूल जाएं। ये बाकी जितने केसेस हैं ये सब ग्रेव्स ऑप्थेल्मोपैथी के हैं। देखिए कितनी सीरियस कंडीशन हो सकती है जो कि विजन थ्रेटनिंग तक आ सकती है। कंजक्टाइवा कंजेस्टेड होगी, इडिमेटस हो सकती है, कॉर्निया तक कंजेस्टेड हो सकता है, लिड्स स्वोलेन होंगी, और उसके साथ भी एक्सट्रीम कंडीशन में आप ये देखें कि इतना ज्यादा कंजेशन होगा कि वह ब्लाइंडनेस तक को प्रोड्यूस कर सकता है। तो यह है ग्रेव्स ऑप्थेल्मोपैथी, जो प्रोप्टोसिस है उससे कंफ्यूज नहीं होना है। सॉरी। तो इस डिस्कशन के बाद आइए हम लोग थेरेपी पे आगे बढ़ते हैं कि हम इसको ट्रीट किस प्रकार से करेंगे। दो केसेस हैं, दोनों अब हम कह रहे हैं कि हमने इन्वेस्टिगेट कर लिया, यह हाइपरथायराइडिज्म। चलिए और स्पेसिफिक हो जाते हैं, यह ग्रेव्स डिजीज के केसेस है। एक केस में T4 TSH वैल्यूज ये है, दूसरे केस में T4 TSH वैल्यूज ये है। इनमें अगर हमें कहना हो कौन ज्यादा टॉक्सिक है, केस 1 या केस 2, बड़ा मुश्किल सवाल है, बड़ा वेग सवाल है। लेकिन TSH जब सप्रेस्ड होता है तो TSH का सप्रेशन 0.5 के नीचे जाने के बाद उसके जो वैल्यूज होते हैं बहुत रिलायबल नहीं रह जाते। 0.001 है या 0.005 है, इन दोनों में बहुत माइनर डिफरेंस होता है, ये हमें मिसगाइड कर सकता है। तो सीवियरिटी ऑफ हाइपोथायराइडिज्म देखनी हो, सीवियरिटी ऑफ हाइपरथायराइडिज्म देखनी हो, तो वो हम T4 के बेसिस पे डिसाइड करते हैं। T4 लेवल जिसका ज्यादा है वह ज्यादा टॉक्सिक है, ट्रीटमेंट हम उसके अकॉर्डिंगली करेंगे, TSH के नहीं। तो यह बात एक बहुत महत्वपूर्ण है कि TSH का सप्रेशन हमको कई बार इमीडिएट पेशेंट कितना टॉक्सिक है, कितना उसमें एडवांटेज मिला, कितना डिसएडवांटेज मिला, वो नहीं बता पाता, वो हमें T4 के बेसिस पे मिलता है। हम जिसका T4 लेवल ज्यादा है उस पेशेंट को लेके चलते हैं। इस पेशेंट को हम कौन सी ड्रग देना चाहेंगे, ये पेशेंट फिजिशियन टू फिजिशियन वेरी कर सकता है, लेकिन हमें यह ध्यान रखना है कि हम आपसे जानना चाह रहे हैं आप कौन सी दवा देंगे। अपने पेपर पे मार्क करके रखिए A, B या C। ठीक है, फिजिशियन टू फिजिशियन वेरी करता है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि PTU एक अलग दवा है और कार्बिमाजोल, मेथिमाजोल ये वास्तव में एक ही दवा है। इसमें जो कार्बिमाजोल है ये प्रो ड्रग है जो बॉडी में जाने के बाद मेथिमाजोल में कन्वर्ट होती, तो मेथिमाजोल एक्टिव ड्रग है, कार्बिमाजोल प्रो ड्रग है, तो ये एक ही ड्रग है। प्रोपाइल थायोरिसिल जो मेडिसिन है वह हम प्रेगनेंसी के लिए केवल बचा के रखना चाहते हैं, ये बहुत टॉक्सिक मेडिसिन है। और कार्बिमाजोल, मेथिमाजोल बहुत बेनाइन मेडिसिन हैं। ये सारी मेडिसिन थायराइड हार्मोन सिंथेसिस को कम करती हैं। PTU में खास बात ये T4 से T3 कन्वर्जन को रोकती है। तो जब भी थायरोटॉक्सिकोसिस क्राइसिस है, हमें इमीडिएट कुछ समय के लिए दवा देनी है, PTU दे लें। लंबे समय के लिए दवा देनी है, PTU ना दें। बीइंग अ टॉक्सिक मेडिसिन, प्रेफर मेथिमाजोल और कार्बिमाजोल। प्रेगनेंसी, कार्बिमाजोल, मेथिमाजोल प्लेसेंटा क्रॉस करती हैं, फीटस को अफेक्ट कर सकती हैं। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है जिसमें कार्बिमाजोल, मेथिमाजोल से इंड्यूस्ड एम्ब्रियोपैथी हो सकती है, वहां पे हम इनको ना दें। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में PTU दे दें, और जैसे ही फर्स्ट ट्राइमेस्टर निकला PTU इज टॉक्सिक फॉर मदर, PTU का प्रयोग ना करें।
कार्बिमोजोल मेथिमाजोल पे आ जाए, क्योंकि यह काफी सेफर मेडिसिन है। अब अगर कार्बिमोजोल मेथिमाजोल में कन्वर्ट होती है तो उनके बीच में रेशियो क्या है? मेथिमाजोल 60% करीब करीब होती है कार्बिमोजोल की, तो जितनी डोज दे रहे हैं उसका 60% हमारी मेथिमाजोल बनेगी। इस बैकग्राउंड के साथ में आइए हम लोग इस पेशेंट को ट्रीट करते हैं। हमें ये डिसाइड कर दिया कि हम इसको कार्बिमोजोल या मेथिमाजोल देंगे। पॉपुलर ज्यादा कार्बिमोजोल है, चलिए हम उसी को डिस्कस करेंगे इस केस डिस्कशन में। कितनी डोज से आरंभ करेंगे, यहां पे भी हमारे व्यूज अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो एक प्रिडोमिनेंट व्यू है वह यह है कि हम इसको 10 से 15 मिलीग्राम दे सकते हैं। कैसे, किस बेसिस पे हमने कहा? हम डिसाइड कर रहे हैं इसको T4 के बेसिस पे। अगर हम T4 लेवल 30 होता, यहां पे T4 20 था, हमने कहा 10-15 मिलीग्राम देंगे, T4 30 होता तो हम थोड़ी ज्यादा मेडिसिन देते। क्या कोई फॉर्मूला है? हाँ, एक बेसिक सा फॉर्मूला है जो कि हर जगह काम नहीं करता। ट्रीटमेंट आरंभ करने के लिए हम इसको प्रयोग में ला सकते हैं। आरंभ करने के बाद फिर तो हमें पेशेंट के रिस्पॉन्स के अनुसार ही चलना होगा। इसका क्या अर्थ हुआ? यदि T4 अपर लिमिट ऑफ नॉर्मल का 1.5 टाइम्स तक है, तो अगर हम 1 को 10 से हम एक तरह से सिनोनिमस मान के चले, 1 गुना होता तो 10 मिलीग्राम चलती, 1.5 गुना है तो 10 से 15 मिलीग्राम, 1.5 से 2 गुना है तो 20 से 30 मिलीग्राम, और 2 से 3 गुना है उससे भी ज्यादा, तो हम हैवी डोजेस सोच सकते हैं इसकी देने की। तो यहां पे हमने कहा कि T3 हमारा अपर लिमिट ऑफ नॉर्मल 12 है, उसका करीब करीब 2.5 गुना है, तो 2.5 गुना होने पे हम 30 मिलीग्राम की डोज सोच सकते हैं। 50 to 70 मिलीग्राम, हाँ, हमने अपने पोस्ट ग्रेजुएट डेज में खूब दी है, लेकिन मुझे नहीं याद आता कि पिछले 20 सालों में, 27 साल हो गए मुझे पोस्ट डीएम प्रैक्टिस में, और मैंने 50 to 75 मिलीग्राम कितने केसेस को दी होगी? महीने में 1 केस जो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। लेकिन पहले हम खूब देते थे हाई डोज में। क्यों? हाई डोजेस से एडवांटेज एक तो मिलता है कि वो जल्दी यूथायरॉइड स्टेज को उससे हमें मिल जाती है, लेकिन बहुत जल्दी वो पेशेंट हाइपोथायरॉइडिज्म वाली फेज में भी जा सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, ड्रग इंड्यूस्ड टॉक्सिसिटी ऐसे केसेस में ज्यादा होती है। लो डोजेस में देने में, लो डोज रेजिमेंट में 10-20 मिलीग्राम की डोजेस में यह संभावना कम होती है। तो अगर हम 20 माइक्रोग्राम पर डीएल वाले T4 का केस का, जो पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने कहा था कि 10-15 मिलीग्राम कार्बिमोजोल हम लोग देंगे, कितनी बार देंगे? सब क्लिनिकल बातें हम लोग रोज करते हैं। हमें अपने एक एक एक्शन को रिव्यू करना है केवल, कि जो हम करते हैं उसमें क्या क्या बारीकियां हैं जो हम ध्यान में रखें, तो अगला केस हम बेहतर तरह से डील कर पाए। क्या हम वंस अ डे दें, ट्वाइस अ डे दें, या थ्राइस अ डे दें? अगर ऐसा करें तो क्यों करें? ये ध्यान रहे कि आरंभ में थायराइड ग्लैंड हाइपर एक्टिव है, वो बहुत तेजी से टर्नओवर की स्टेज में है। उसके अंदर ग्लैंड भी ड्रग भी जाएगी जब अंदर, तो वहां पे बहुत देर रुक नहीं पाएगी, वो बाहर लीक कर जाएगी। इसीलिए आरंभ में जब हम थेरेपी आरंभ करते हैं तो हम बीडी या टीडीएस डोज में उसको आरंभ करें, जिससे कि वो 24 आवर्स उसका इफेक्ट मेंटेन कर पाए। जैसे जैसे हम लोग उसको यूथायरॉइड पेशेंट को बनाते जाए, उसका जो टर्नओवर है वो स्लो हो जाएगा। अब कुछ समय के बाद, 2-3-4 महीने के बाद, हम उस पेशेंट को ओडी डोजेस में भी यह ड्रग दी जा सकती है, क्योंकि यहां पे प्लाज्मा हाफ लाइफ मैटर नहीं करती, यहां मैटर करता है ग्लैंड के अंदर ड्रग पहुंचने के बाद ग्लैंड के अंदर कितने समय तक रहती है। तो हम इस बात पे मत जाएं कि जो कार्बिमोजोल मेथिमाजोल की हाफ लाइफ कितनी है, बल्कि ग्लैंड के अंदर स्टे इनिशियल फेज में नहीं करेगी, हम जल्दी जल्दी देंगे, बाद में ज्यादा समय तक स्टे करेगी तो हम ओडी डोजेस में दे सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन बनता है, हम इसको रीइवेल्युएट कब करेंगे? पेशेंट की हमने थेरेपी आरंभ की, हम
उसको कितने दिनों बाद रीइवैल्यूएशन के लिए बुलाएंगे। तो यहां पर भी यह ध्यान रखना है कि थायराइड हार्मोन्स का इवैल्यूएशन कई लोग सप्ताह दिन में या 2 सप्ताह में 15 दिन में कराते हैं, ऐसे में नहीं कराना। थायराइड हार्मोन चाहे हाइपोथायराइडिज्म हो चाहे हाइपरथायराइडिज्म हो, इसका इवैल्यूएशन हमको कुछ समय देना है, 30, 40, 50 दिन तब कराना है। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि थायरॉक्सिन की हाफ लाइफ ही 7 डेज है। थायरॉक्सिन एक बार सर्कुलेशन में आ जाए तो 7 into 4 to 5, तो या 8 डेज भी कई जगह लिखी जाती है, तो 8 into 4 to 5, तो मतलब 32 to 45 डेज तक वो थायराइड हार्मोन स्टे करेगा। इसलिए हम जब थायरॉक्सिन का कोई भी टेस्ट हमें कराना हो तो 1 महीने से पहले उसका बहुत वेरिएशन नहीं होती, हमको कराने से बचना चाहिए। तो टेस्ट हम कराएंगे कौन सा? T3, T4, TSH या सब। जब हम इन बारीकियों को नहीं जानते तो हमारी टेंडेंसी होती है कि हम सारे टेस्ट करा लेते हैं, और बल्कि कई बार तो एंटी-टीपी एंटीबॉडीज भी बार बार कराते रहते हैं। वास्तव में इसकी आवश्यकता नहीं है। किसकी आवश्यकता है ये अगर हम लोग समझें तो T4 वह हार्मोन जो ग्लैंड सिक्रीट कर रही है, T3 नहीं कर, T3 का बहुत थोड़ा पोर्शन करती है, T4 ज्यादा करती है, और वो T4 T3 में कन्वर्ट होता है पेरिफेरी में जाके। तो ग्लैंड सिक्रीट कर रही है T4, तो या तो T4 या फ्री T4, या हम रीएवल्यूएशन में कराएंगे, TSH नहीं कराएंगे। क्योंकि TSH एक बार सप्रेस हो जाता है तो उसको सप्रेशन से बाहर निकलने में बहुत समय लगता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 महीने, कई बार साल भर तक TSH सप्रेस्ड बना रहता है। तो इनिशियल थेरेपी हमें T4 के बेसिस पे हमें उसको टाइट्रेशन करना है, TSH के बेसिस पे नहीं करना है। T4 या फ्री T4 करा के हम इनिशियल थेरेपी को टाइट्रेट करते हैं। जब वो नॉर्मल होने लग जाता है तब हम इसके बाद के और स्टेप्स पर चर्चा करेंगे। तो अब हम इसकी बात करते हैं कि इतने समय अगर हमें लग जाता है, T4 की हाफ लाइफ इतनी लंबी है, एक बार T4 सिक्रीट हो गया, बन रहा है, स्टोर जो हुआ है वही निकल रहा है, तो महीने से 2 महीने तक तो उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं आने। पेशेंट को सिम्टोमेटिकली उसको इंप्रूवमेंट देने के लिए हम और क्या कर सकते हैं? स्टेरॉइड थेरेपी का कोई रोल नहीं है, यह ध्यान रखें, अदर देन एक्टिव ग्रेव्स ऑफ्थल्मोपैथी। जब ग्रेव्स ऑफ्थल्मोपैथी, वो भी मैलिग्नेंट ऑफ्थल्मोपैथी हो, तब स्टेरॉइड देने हैं, अन्यथा नहीं। बीटा ब्लॉकर्स और एंजियोलिटिक्स यह हमारे लिए सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए हम दे सकते हैं, और उनमें भी कौन सा बीटा ब्लॉकर? जो कि नॉन स्पेसिफिक हो, स्पेसिफिक नहीं, यहां में मेटोप्रोलोल या नेबिवोलोल नहीं देना, यहां में नॉन स्पेसिफिक बीटा ब्लॉकर देना है जो T4 T3 कन्वर्जन को भी रोकता है। प्रोप्रेनोलोल T4 का T3 कन्वर्जन को भी बाधित करता है। तो इस प्रकार से सबसे अच्छा हमारा जो बीटा ब्लॉकर है ऐसी कंडीशंस में नॉन स्पेसिफिक प्रोप्रेनोलोल। अब आइए लौटते हैं अपने केस में। 20 माइक्रोग्राम पर DL उसका T4 था। जब हमने 15 मिलीग्राम पर डे दिया और 1 महीने बाद T4 लेवल्स कराए तो 20 से घट के 15 मिलीग्राम हो गए। अब हम क्या करेंगे? हम कार्बेमाजोल की डोज कम करें, सेम रखें या बढ़ा दें? रोज का सवाल है। रोज हमारे पास ये पेशेंट्स आते हैं, रोज आप ट्रीट करते हैं। करना क्या है? जब हम देख रहे हैं कि कम तो हुआ है लेकिन अभी अपर लिमिट ऑफ नॉर्मल से ज्यादा है, तो हमारे पास 2 बिंदु हो सकते हैं। क्योंकि फॉल काफी अच्छा है तो कोई कहता है कि हम सेम डोज चलाएंगे, उसमें भी कोई हर्ज नहीं, और अभी अपर लिमिट से ज्यादा है तो माइल्ड डोज इंक्रीमेंट करेंगे, इसमें भी कोई हर्ज नहीं। तो इसमें 15 या थोड़ा बढ़ा के 20 मिलीग्राम दी जा सकती है। अब 2 महीने बाद ये 10 मिलीग्राम हो गया इसका T4, सॉरी 10 माइक्रोग्राम पर DL T4 हो गया। अब क्या करेंगे? हम 10 ही रखें, 15 इसको करें, ये 20 करें, या कम करके बंद कर दें? फिर हमें ध्यान रखना है अभी भी ये मिड नॉर्मल, मतलब जो नॉर्मल रेंज में है लेकिन अपर लिमिट ऑफ नॉर्मल के पास है, हड़बड़ी ना करें। अभी हम उसी
को चला सकते हैं, उसी वैल्यू को जो हमारी 15 मिलीग्राम चल रही थी, इसको थोड़ा और घटने दें, तब हम उसकी डोज घटाने का ध्यान रखें तो ज्यादा अच्छा है। बहुत जल्दी घटाने से कई बार जब वो फिर बाउंस बैक करेगा तो केस में आगे दिक्कत आएगी। तीसरे महीने पे ये 20 से 15 हुआ, 15 से 10 हुआ, अब तीसरे महीने पे 5 माइक्रोग्राम पर डे हो गया। अब क्या करेंगे? हालांकि इतनी जल्दी आता नहीं है, लेकिन ये केस रिस्पॉन्ड कर रही है। अधिकतर ये केसेस ले लेते हैं 5-6 महीना। बिल्कुल लोअर लिमिट पे आ गया, अब क्या करेंगे? बंद कर दें? बंद नहीं करना है, डोज को डिक्रीज करना है। और अब जब हम देख रहे हैं T4 हमारा लोअर लिमिट पे आ रहा है, तब डोज रिडक्शन पे ध्यान देना चाहिए। तो इस सिनेरियो का जो मैसेज है, संदेश है, वो यही है कि जब T4 हमारा लोअर लिमिट पे आने लग जाए, तब हम डोज घटाने पे ध्यान दें। और उस डोज को घटाने के बाद जब ये पॉइंट इस लिमिट के नीचे अगर जाने लग जाता है, नॉर्मल लिमिट से नीचे चला जाए T4, तब क्या करें? तब हम इस डोज को 5 मिलीग्राम पर जो अभी तक घटाई थी, हम उसको थोड़ा और ज्यादा करके घटाने का ट्राई कर सकते हैं, लेकिन डोज को बंद नहीं करेंगे। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि पेशेंट का T4 लो हुआ और हम एंटीथायराइड ड्रग बंद कर देते हैं। बंद करने में जो उसका ऑटोइम्यून रिस्पॉन्स है वह भी समाप्त हो जाएगा। फ्लेयर अप तो करना ही करना है। और अगर हमने पेशेंट को इर्रेगुलर थेरेपी दी, तो इर्रेगुलर थेरेपी में ऐसे पेशेंट्स में रिलैप्स की संभावना बढ़ जाती है। तो यह ध्यान रखें, एंटीथायराइड ड्रग लो नॉर्मल वैल्यू पे आने पे घटाना आरंभ करें। अगर कभी बिलो नॉर्मल हो जाए तो बंद ना करें, डोज घटा के। कभी कभी ये वाली बात वैसे मैं कहना नहीं चाहता, क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट करती है। कभी कभी हम लोग ब्लॉक एंड रिप्लेस थेरेपी भी देते हैं, कि ऐसे केस में जब हमने देखा है कि हाइपोथायराइड हो गया पेशेंट, तो हमने थोड़े दिन के लिए उसे काम चलाने के लिए 10, 15, 20 दिन के लिए हमने थायरोक्सिन दे दी, जिससे सिम्प्टोमेटिक इंप्रूवमेंट आ जाए। तब तक डोज जो घटा के रखी थी उसने केस को मेंटेन कर दिया। इनिशियल थेरेपी TSH remains the mainstay, should become the mainstay of monitoring of the such grave disease patient. इनिशियल थेरेपी T4 के बेसिस पे, TSH सेपरेशन से बाहर आ जाए तब TSH के बेसिस पे। अब क्या करेंगे? 9 महीने के थेरेपी के बाद हमने देखा TSH हमारा अपर लिमिट पे आ गया, T4 लोअर लिमिट के पास है। अब क्या करें? ट्रीटमेंट बंद करें या सेम डोज चलने दें? तो यहां पे यह ध्यान रखना है, फिर वही बात रिपीट कर रहा हूं, ट्रीटमेंट बंद नहीं करना। इसको हमें कब तक चलाना है? 1 साल, 1.5 साल, 2 साल या उससे भी ज्यादा? यह देखा जाता है कि 1.5 से 2 साल कम से कम जब यह ट्रीटमेंट चलता है, तो ग्रेव्स डिजीज के रिमिशन में जाने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसलिए डोज को घटाकर, कभी कभी डोज घटाने के साथ साथ थायरोक्सिन भी देके हम इस पेशेंट को लिंगर ऑन करते हैं। ना जानने वाला कहेगा देखो बेवकूफ बना रहे हैं, कि एक थायराइड दबाने की दवा दे दी, एक थायराइड बढ़ाने की दवा दे दी और पेशेंट को ये फंसाए हुए हैं। लेकिन हमारे आपके समझने की बात है, हमें 1.5 से 2 साल उसका इम्यूनोसप्रेसिव स्टेट में रख के उसको रेमिशन इंड्यूस करना है। यह हमारा लक्ष्य है ऐसे केसेस में, कि ग्रेव्स डिजीज का केस है तो हम अगर साल भर पे दवा बंद करते हैं, उसके रिलैप्स की संभावना बढ़ जाती है। तो मिनिमम डोज ऑफ एंटीथायराइड ड्रग, उस पर यदि उस पर भी हाइपोथायराइडिज्म हो रहा है तो साथ में थायरोक्सिन देके हम उस पेशेंट को 1.5 से 2 साल ट्रीटमेंट देना चाहते हैं। रेमिशन की संभावना किन लोगों में ज्यादा होती है? जिन पेशेंट्स, एक तो बात सीधी सी है, जो पेशेंट जितना ज्यादा फ्लोरिड होगा उसमें सीवियर टॉक्सिसिटी वाला, उसमें रेमिशन की संभावना कम होगी। जो माइल्ड केस होगा उसमें ज्यादा होगी। लेकिन अगर ग्लैंड लार्ज है, अगर लार्ज ग्लैंड है, उसमें भी संभावना रेमिशन में जाने की पुअर होती है। स्मॉल ग्लैंड में ज्यादा अच्छी होती है। हाँ, कोई पेशेंट बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड कर रहा है, जैसे हमने अपने केस में देखा, 3 महीने में ही उसका T4 लोअर लिमिट पे आ गया, इसमें रेमिशन की संभावना ज्यादा होगी। जिनमें हम बहुत तेजी से डोजेस घटा पा रहे हैं उनमें ज्यादा होगी। ये तो कॉमन सेंस है।
ऐसे में हम इसको कैसे कैसे समझ सकते हैं कि रिलैप्स हमारा कब हो सकता है और रेमिशन में जाएगा या नहीं जाएगा पेशेंट। यदि किसी पेशेंट को फैमिली हिस्ट्री है तो उसमें यंग एज, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ओल्ड एज के पेशेंट में रेमिशन ज्यादा अच्छा होता है, यंग एजेस में रेमिशन कम अच्छा होता है। तो जो बच्चे हैं ग्रेव डिजीज के, उनमें तो कई बार 6, 7, 8, 10 साल तक हमें ट्रीटमेंट देना पड़ता है और रेमिशन में नहीं जाते। मेल्स रेमिशन में नहीं जाते। बड़ा थायराइड है, ऑर्बिटोपैथी ज्यादा है, थायराइड फंक्शन ज्यादा टॉक्सिक है, और अगर थायराइड रिसेप्टर एंटीबॉडीज पॉजिटिव है तब रेमिशन की जाने की संभावना कम होती है। अगर थायराइड रिसेप्टर एंटीबॉडीज कम हो रहे हैं तो रेमिशन में जाने की संभावना ज्यादा होती है। इसके अतिरिक्त एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जिसको हमें अपने पेशेंट को समझाना चाहिए, इस बात पे जोर देनी चाहिए, स्मोकिंग रेमिशन में जाने की संभावना कम कर देता है। तो स्मोकिंग छोड़नी है। शॉर्ट ड्यूरेशन थेरेपी लेंगे, इरेगुलर थेरेपी लेंगे तो फिर संभावना कम हो जाती है। तो अगर हम अपने पेशेंट में जब ये हम दवाएं हम देख रहे हैं कि रेमिशन में जा रहा है, तो ऐसे केस में जब हम रेमिशन के लिए ये डोज घटा रहे हैं एंटीथायराइड ड्रग्स की, उसके बाद हमें क्या करना चाहिए? तो इसके बाद हमें वास्तव में कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, केवल पेशेंट को फॉलो करिए। कितना फ्रीक्वेंटली? आरंभिक समय में हम थोड़ा जल्दी जल्दी देख लेंगे 2-3 महीने पे, 6 महीने के बाद 3 से 6 महीने पे, और साल भर के बाद फिर रेमिशन कब ब्रेक होगा, रिलैप्स कब होगा, कोई नहीं जानता। तो देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, फॉलो करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये डिस्प्यूटेड है। लेकिन ऐसे केसेस में एक ईयरली फॉलोअप इसका बनाने की राय दी जा सकती है। तो मित्रों, ये कुछ बातें थी एंटीथायराइड ड्रग्स के बारे में। बहुत शॉर्ट में मैंने क्लिनिकली बताना चाहा, और कुछ चीजें हैं इसमें जो कि क्लिनिकल टेस्ट किए हैं। कुछ लोग इसमें ओपिनियन उनकी अलग भी हो सकती है कि भाई हम तो ऐसा करना चाहते हैं, इन्होंने ऐसा क्यों बताया। इसके डिस्कशन का कोई अंत नहीं है, हम लोग कर सकते हैं। 2 मॉडलिटीज और हैं, रेडियो आयोडीन और सर्जरी, जिसको मैं एक पासिंग रेफरेंस उनका दे दूं। मेडिकल थेरेपी को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक सिम्प्टोमेटिक थेरेपी जो हम लोगों ने बात की, बीटा ब्लॉकर्स या एंजियोलिटिक्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर विशेष रूप से वेरापामिल टाइप के, या डिल्टियाजिम अगर बहुत फास्ट वेंट्रिकुलर रिस्पॉन्स है और एट्रियल फिब्रिलेशन इसके साथ में हो रहा है, तो इनका काम सिम्प्टोमेटिक थेरेपी के लिए है। या यूथायराइड हो जाए जैसे जैसे पेशेंट, हम इसको बंद कर सकते हैं। जो एंटीथायराइड ड्रग्स हैं उनको हमें 1.5 से 2 साल देने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि रेमिशन की संभावना ज्यादा बढ़ जाए। यदि पेशेंट रेस्पॉन्ड ना करे, यदि पेशेंट को ट्रीटमेंट लेने के बाद उसकी टॉक्सिसिटी हो रही हो और हमें ट्रीटमेंट मेडिकल थेरेपी बंद करना पड़े, यदि पेशेंट उस पर प्रोग्रेस करता जाए, ऐसे केसेस में हमें रेडिकल ट्रीटमेंट रेडियो आयोडीन के तौर पे, रेडियो आयोडीन को मित्रों में टारगेटेड मिसाइल कहता हूं। वो ढूंढ के जाती है और जहां जहां थायराइड टिश्यू होता है वहां वहां उसको ब्लास्ट करके उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। तो अगर थायराइड नोड्यूल है तो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट उसका रेडियो आयोडीन है। पूरी ग्लैंड बची रहेगी, एक नोड्यूल जो जरा सा केवल उतने को ही वो डैमेज करेगी, बाकी पूरी ग्लैंड बची रहेगी। तो रेडियो आयोडीन का तो ड्रग ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है सॉलिटरी टॉक्सिक नोड्यूल का, लेकिन ग्रेव्स डिजीज के केस में अगर नॉन रिस्पॉन्डिंग केस है तब हम दे सकते हैं। इसी तरह से एक लार्ज गोइटर है, पेशेंट रिस्पॉन्ड ही नहीं करा, 5 साल 10 साल हो गए ट्रीटमेंट के, तब उसको सब टोटल थायराइडेक्टमी के लिए भी सोचा जा सकता है। तो यह दोनों केसेस है जो इंट्रैक्टेबल केसेस में इन मॉडलिटीज ऑफ ट्रीटमेंट का हम चयन कर सकते हैं। तो यह कुछ बातें थी जो मैं इससे प्रैक्टिकल और बहुत शॉर्ट में मुझे थोड़ा जल्दी करना पड़ा। इनको यदि हम क्वेश्चंस को और डिस्कशन के साथ में करते तो यही प्रोग्राम हमारा लगभग 4 घंटे चलता है, और उसमें हम इसके विभिन्न और पहलुओं को हम लोग
टच कर पाते हैं। फिलहाल जो यहाँ पे क्वेरीज होंगी, जो कंट्रोवर्सीज मैंने क्रिएट कर दी होंगी, जो कि अक्सर होता है जब क्लिनिकल डिस्कशन करते हैं, तो उसके लिए हम लोग इसको आगे डिस्कस कर सकते हैं डॉक्टर एनके सिंह और उनकी टीम के साथ। एक बार पुनः आप सबके बुलाने के लिए इस फोरम में धन्यवाद। ये हमारी पुस्तकें जो हैं सरल हिंदी भाषा में जिस तरह से हम लोगों ने डिस्कस किया, मैं समझता हूं कि शायद ये एक जो मिथक है कि हम अपनी मेडिकल साइंस को या किसी भी हायर साइंस को हम हिंदी में नहीं डिस्कस कर सकते, शायद वह उसको भंग करने में प्रभावशाली आप लोगों को लगा हो कि नहीं, मेडिकल साइंस को भी हिंदी में पढ़ा समझा और समझाया जा सकता है। और इसी प्रकार से इन पुस्तकों में हमने सरल भाषा में क्लिनिकल केसेस के माध्यम से डिफरेंट क्लिनिकल सिनेरियोज को भी डिस्कस करते हुए इसी तरह से इसमें लिखा है। यदि आप लोग इच्छुक हो, कोई इसको, ये थायराइड की पुस्तक या डायबिटीज की और पुस्तकों की, तो मैं डॉक्टर सिंह से निवेदन करूंगा कि ग्रुप में उनको भेज दूंगा, ग्रुप में शेयर कर लें। पुनः धन्यवाद। मेरे ख्याल से ये आज का जो फिर आपने बताया, मेरे ख्याल से जिनको जो भी प्रॉब्लम रही होगी कि हम लोग कई बार ये रोज का रोज हमारा जो ऐसे केसेज आते हैं, कब बंद करना है कब करना है, तो ये बहुत ही उम्दा और मेरे ख्याल से ये दिल को होते हुए दिमाग तक चला गया है। तो धन्यवाद, एक बहुत ही अच्छा था। कुलश्रेष्ठ सर, कुछ कुछ चैट सर बॉक्स में क्वेश्चंस भी हैं, आपका पहला कमेंट, उसके नहीं, बाद पहला फिर सर्वप्रथम मैं आपको और डॉक्टर पंकज अग्रवाल साहब को बहुत बहुत अभिनंदन करूंगा कि आपने इतना प्रशंसनीय कार्य किया है कि शुद्ध हिंदी में और इतनी सरल भाषा में थायराइड जैसे कॉम्प्लिकेटेड, मतलब थायराइड वैसे बहुत इजी लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली एक्चुअली मैनेजमेंट में काफी सारे लोगों को प्रॉब्लम्स रहती हैं। और सबसे बड़ा प्रश्न यही था कि ट्रीटमेंट कब बंद करना है। कि नॉर्मली काफी पेशेंट में, स्पेशली यंग फीमेल्स में, रेमिशन बहुत कॉमन नहीं है। मतलब 8-10 साल का तो मेरे फॉलोअप में काफी सारे पेशेंट हैं, तो थोड़ा दिन रहेगा रेमिशन, फिर शुरू हो जाता है, तो देन वी हैव टू स्टार्ट इट अगेन। और मेरा दूसरा क्वेश्चन रहेगा, एमाइडोरॉन वाली हाइपर थायराइडिज्म, उसको आप कैसे ट्रीट करेंगे। और तीसरा जो है वो अल्ट्रासोनोग्राफी, जो कि आजकल बहुत कॉमनली यूज होती है, आपका क्या उस पर अनुभव है और क्या कमेंट है। आपके इन उत्साहवर्धक शब्दों के लिए धन्यवाद। बुजुर्गों का, बड़ों का उत्साहवर्धन हमेशा यंगस्टर्स के लिए लाभदायक होता है। पहली बात कि कब बंद करना है, तो इसमें थोड़ा सा बात बहुत जल्दबाजी में ही की गई कि इसको बंद कब किया जाए। अधिकांश केसेस में 1.5 से 2 साल दिया जाता है ट्रीटमेंट, और उसमें हम ग्रेजुअली रिड्यूस डोजेज के साथ उस स्थिति में आ जाते हैं कि जब हम 5 मिलीग्राम कार्बिमोजोल, और मैं तो 2 काम सर और भी करता हूं जो कि किताबों में नहीं लिखे हैं। यहां पे मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि हम लोग कुछ एविडेंस बेस्ड मेडिसिन पे जरूरत से ज्यादा हम डिपेंडेंट होते जाते हैं। एविडेंस कहाँ है? हमने बुद्धि को तो किनारे ताक पे रख दिया है कि जो ट्रीट करने वाला वो महामूर्ख है, उसको सिर्फ वही करना चाहिए जो अमेरिका से एविडेंस पे लिख के आया है। तो यहां पे यह मैं जरूर कहना चाहूंगा कि मैं 2 काम करता हूं जो कहीं लिखे नहीं है। एक तो मैं कार्बिमोजोल को 5 मिलीग्राम की आधी डोज 2.5 मिलीग्राम भी देता हूं, जो नहीं लिखा है। नंबर 2, मैं बंद करने से पहले किसी पेशेंट की जब हम बंद करना होता है तो मैं कुछ दिन ऑल्टरनेट डेज देता हूं। अब भाई इसका तुम कह रहे हो तुम्हारा एक्सपीरियंस बेस्ड मेडिसिन तुम कर रहे हो, इसका तुम्हारे पास लॉजिक क्या है? लॉजिक बताओ। लॉजिक ये है कि जब हम उस पेशेंट को 2 महीने ऑल्टरनेट डेज पे, एक दिन दिया एक दिन नहीं दिया, बंद करने से पहले और आधी गोली पे हम देख लेते हैं अगर वो रिलैप्स या उसका T4 लेवल राइज नहीं कर रहा, इसका मतलब वास्तव में वो पेशेंट प्रिपेयर्ड है, उसकी ग्लैंड उस स्थिति में है कि वह रेमिशन में जा सकती है। जब हम पूरा बंद कर देंगे तो संभावना उसमें कम होगी। अगर वो इतने में ही T4 लेवल राइज करने लग जाए, जो कि कई पेशेंट्स में होता है, हम मूड बना रहे हैं कि इसका ट्रीटमेंट हमें अब बंद करना है, लेकिन हमें ऑल्टरनेट डे थेरेपी में वो राइज करने लगा, तो ऑल्टरनेट डेज पे राइज कर रहा है तो बंद करने पे क्या होगा?
तो मैं उनको फिर डोज बढ़ा के रेगुलर कर लेता हूं, नंबर 1। बट दिस इज एक्सपीरियंस बेस्ड, इट इज नो वेयर मेंशन इन टेक्स्ट बुक्स और इन जर्नल्स और इन लिटरेचर। नंबर 2, यंग फीमेल्स में जहां तक बात आपने कही, तो जितनी यंग एजेस होंगी उसमें संभावना उतनी ज्यादा ये होती जाएगी कि वो पेशेंट बार बार रिलैप्स करेगा। तो वहां पे कोई चांस नहीं है। जब हम ये देखें कि उसकी फैमिली कंप्लीट हो गई और उधर से स्टेबल है वो, तब हम उस पेशेंट को रेडियो आयोडीन के लिए ले जा सकते हैं। रेडियो आयोडीन देने के बाद 6 महीने तक लेडी को कंसीव नहीं करना चाहिए, प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए। ये एक कैविएट ऐसी स्थिति में जरूर है। तीसरा, सर आपने एक बात दूसरी क्या कही थी? अल्ट्रासोनोग्राफी और एमाइडोरोन इंड्यूस्ड हाइपरथायराइड। हाँ, एमाइडोरोन। पहले एमाइडोरोन की बात कर लें। एमाइडोरोन एक नोटोरियस ड्रग है थायराइड के लिहाज से। जितने तरह की एबनॉर्मलिटीज हो सकती हैं, एमाइडोरोन सब करती है। एमाइडोरोन एक्यूट टॉक्सिकोसिस भी करती है, क्रॉनिक टॉक्सिकोसिस भी करती है, एक्यूट हाइपोथायराइड फेज में भी ले जाती है, क्रॉनिक हाइपोथायराइड फेज में भी ले जाती है, और वैक्सिंग वेनिंग भी करती है। तो इसको लेते हुए अच्छा, एमाइडोरोन इज क्रिटिकल ड्रग, उसको क्रिटिकल कंडीशन में देते हैं। वो हमारे लिए ऐसी नहीं है कि हम उसको बंद कर दें। तो यहां पे हमें पेशेंट को यही कहना पड़ता है, भाई जो होगा, हम ड्राइविंग सीट पे नहीं, ड्राइविंग सीट पे एमाइडोरोन है, हम पीछे बैठे हैं, जैसी परिस्थिति होगी हम वैसा करेंगे, आपको और हमको दोनों को निभाना है। तो यहां पे जब पेशेंट जिस फेज में जाता है उस तरह का हमें ट्रीटमेंट में बदलाव लाना पड़ता है। तो ये बहुत ही मुश्किल स्थिति हो जाती है। जो तीसरी बात है अल्ट्रासोनोग्राफी की, तो अल्ट्रासाउंड में बहुत डेवलपमेंट्स हुए हैं थायराइड में, नो डाउट। उसमें सबसे बड़ा जो अच्छा फीचर है कि हम उसकी वेस्कुलरिटी को एसेस करने लग गए हैं, और वो वेस्कुलरिटी हमको एक यह अनुमान दिलाती है कि थायराइड ग्लैंड कितनी एक्टिव है। तो वेस्कुलर ग्लैंड इज सिनोनिमस विद एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो अब वेस्कुलरिटी अगर ज्यादा है तो थायराइड ग्लैंड एक्टिव भी होगी, तो वो ग्रेव्स होनी चाहिए। लेकिन यहां पे बस ये ध्यान रखना है कि ये बहुत सब्जेक्टिव है, बहुत ऑपरेटर डिपेंडेंट है। तो यहां पर वो ऑपरेटर वो थायराइड के केसेस उसने काफी किए हों कि वो ये समझ पाए, समझा पाए कि नहीं नहीं ये हाइपर वेस्कुलर ग्लैंड है वाकई, और इसमें जाने के चांसेस हैं। अल्ट्रासाउंड का बेस्ट यूज हमारे सर्जिकल डिसऑर्डर्स ऑफ थायराइड में ही है, ना कि मेडिकल डिसऑर्डर्स में। तो हम मेडिकल डिसऑर्डर्स में इसके प्रयोग से बचना ही चाहते हैं, क्योंकि हमें बहुत क्लियर कट लाभ नहीं होता। जब हमें स्कैनिंग ही करनी है तो हम सीधे रेडियो न्यूक्लियाइड स्कैन करें, वह बेहतर रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सर, अच्छी unmute कर तरीके से लीजिए। आपने डॉक्टर हितेश, योर कमेंट, आपका क्या कमेंट है अभी? सर ने जिस सरलता के साथ इसको समझाया सर, इसके बाद मैं तो कुछ बोलने योग्य ही नहीं हूँ। बस सर ने जो सबसे पहली बात कही थी उसमें मैं एक चीज बोलूंगा कि हर थायरोटॉक्सिकोसिस हाइपरथायराइडिज्म नहीं होता है, मगर हर थायरोटॉक्सिकोसिस का पार्ट होता है। सर ने इसे जिस सरलता से समझाया, हमें डायग्नोस करने के लिए एक तो हिस्ट्री लेना बहुत जरूरी होता है मरीज के। समटाइम व्हाट हैपेंस, हम जल्दीबाजी में इसको चालू तो कर देते हैं, बट इसका एक कॉन्सिक्वेंस होता है कि इसको फिर बंद भी करना होता है। तो इसलिए हिस्ट्री लें और उसको हम समझे कि प्राइमरी है, सेकेंडरी है, किस वक्त है। एक और चीज जो मैं विशेष रूप से बोलूंगा, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम देखते हैं कि कई महिलाओं का टीएसएच बहुत कम होता है, तो गैस्टेशनल थायरोटॉक्सिकोसिस होता है। वो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल होता है, उसमें हमें दवाई देने की जरूरत नहीं होती है। कभी कभार कई लोगों को पता नहीं होता, वो जल्दीबाजी में दवाई चालू कर देते हैं। तो इस चीज का हमें विशेष ध्यान रखना है। सर इस पे एक थोड़े से कमेंट करें पंकज सर। हाँ, ये बात आपने बहुत अच्छी कही, बड़ी दिल की बात कही हमारे। लेकिन कभी कभी होता है ना, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। तो ये एक ऐसा पहलू है जिसमें जरा डिस्कशन लंबा हो सकता है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में जितने वेरिएशंस होते हैं थायराइड फंक्शंस में, वह सब ऐसा दिखाते हैं कि थायरोटॉक्सिकोसिस हो गई। क्यों? ईस्ट्रोजन बढ़ा और उसके कारण से T4 T3 लेवल बढ़ गए, टॉक्सिकोसिस। HCG प्लेसेंटा से सिक्रीट हुआ
एससीजी और टीएसएच एक प्रकार के होते हैं, तो जितना एससीजी बढ़ता है टीएसएच उतना सप्रेस होता है, तो टीएसएच सप्रेस हो गया, तो T3 T4 हाई और टीएसएच लो। और पेशेंट को वैसे ही प्रेगनेंसी के कारण से थोड़ा टैकीकार्डिया, थोड़ा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ये सब होने लगता है, तो वो बड़ी क्लासिकल एक सिनेरियो बन जाता है कि इसको थायरोटॉक्सिकोसिस है, रेफर टू एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, रेफर टू फिजिशियन। और कई बार वहां पर आरंभ भी हो जाता है एंटीथायराइड ड्रग। देखिए यहां पर एक बात जो मैं कहना चाहूंगा, प्रकृति में जो कुछ होता है वह निरर्थक नहीं होता। प्रकृति में जो होता है वो बहुत सोच समझ के किसी खास विशेष पर्पज से होता है। ये बात क्यों हुई कि नॉर्मल प्रेगनेंसी में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में T3 T4 हाई होते हैं, टीएसएच लो होता है। T3 T4 हाई इसलिए होते हैं क्योंकि T4 का प्लेसेंटल पैसेज बहुत अच्छा नहीं होता। तो जब पटनी साहब को नमस्कार, तो जब प्लेसेंटा पे पैसेज T4 का बहुत अच्छा नहीं होता, बहुत अच्छे से क्रॉस नहीं करती, धीरे धीरे क्रॉस करती है, तो मदर के T4 लेवल उठाने पड़ते हैं। जब T4 लेवल ज्यादा होंगे तो पर्याप्त मात्रा कम से कम फीटस तक पहुंच जाएगी। और ध्यान रहे, फीटस में पहले 3 महीने 12th वीक ऑफ प्रेगनेंसी पे फीटस की थायराइड ग्लैंड एक्टिव होना आरंभ करती है। तो बच्चे पहले के 12 वीक कौन काम चलाएगा? माँ। उसके लिए माँ का T4 लेवल हाई होना आवश्यक है। और वो T4 हाई लेवल करने के लिए यह प्रक्रिया होती कि नॉर्मल अपर लिमिट से 1.5 गुना ज्यादा वो रखती है बॉडी। तो यह हमें ध्यान रखना है कि अपर लिमिट ऑफ नॉर्मल से 1.5 गुना ज्यादा T4 तो नॉर्मल है, फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन ऑफ प्रेगनेंसी है। फ्री T4 अगर हम कर रहे हैं तो फ्री T4 में इतना वेरिएशन नहीं होता, तो फ्री T4 नॉर्मल लिमिट के, अपर लिमिट के पास होना चाहिए। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में जल्दबाजी ना करें। इस वक्त मां को और फीटस को आवश्यकता है थायराइड हार्मोन ज्यादा करने की। इस वक्त एंटी थायराइड ड्रग देना बच्चे के लिए भारी पड़ सकता है, उल्टा हो सकता है। हम जिम्मेदार होंगे बच्चे में कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटी उत्पन्न करने के लिए। तो ऐसे में कई बार, अच्छा, रेडियो न्यूक्लियर स्कैन करा नहीं सकते, तो घूम फिर के क्या हुआ, वेट एंड वॉच, मास्टरली इनएक्टिविटी। हमें 1 महीना देखें T4 लेवल क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, राइजिंग ट्रेंड में है, पेशेंट के सिम्टम्स बढ़ रहे हैं, तो हमें फिर यहाँ पे क्लिनिकल बेसिस पे ये एंटी थायराइड ड्रग्स स्टार्ट करनी होंगी। और यहाँ पे हम ध्यान रखें, पेशेंट को थोड़ा सा अपर लेवल पे ही रखना है। जो हम लोग कहते हैं 5 to 12 T4 लेवल नॉर्मल है, तो हमें अपर हाफ ऑफ नॉर्मल में ही रखना है, 8 to 12 में, 8 के नीचे नहीं आने देना है, क्योंकि फिर वो फीटस के लिए डेट्रीमेंटल होगा। तो प्रेगनेंसी में जस्ट स्टार्ट लो एंड गो स्लो। सर फॉलोअप कितना टाइम पे करना है प्रेगनेंसी में? अगर आपने कहा कि 1 महीने बाद बुलाना है, आपके पास पेशेंट फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद ही आता है, फर्स्ट मंथ के बाद ही आता है, और वो सेकंड मंथ आपने फॉलोअप में निकाल दिया, तो 1 महीना प्रैक्टिकली मिला। जबकि गायनिकोलॉजिस्ट पेशेंट को इतना डरा देते हैं कि अगर तुम्हारा थायराइड गड़बड़ हो गया तो बच्चा बिगड़ जाएगा। तो पहला प्रश्न जो फिजिशियन के पास आता है पेशेंट, या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास आता है, वो सबसे पहले यही कहता है कि मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये बड़ा संकट है, मतलब धार्मिक संकट कहिए या जो भी कहिए आप, कि उस पे कैसे मतलब उसको किया जाए। क्योंकि आपने कहा, जैसे आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कोशिश हम लोग भी यही करते हैं, लेकिन पेशेंट का इतना प्रेशर होता है, वो तो रिपोर्ट देख के आ रहा है, उसके गायनिकोलॉजिस्ट ने उसको उससे ज्यादा डरा दिया। गायनिकोलॉजिस्ट कहता है कि थायराइड। ये बात आपने बहुत अच्छी कही। यहाँ पे लड़ाई हमारी और गायनिकोलॉजिस्ट की होती है, और मुझे अक्सर कहना पड़ता है कि देखो, मेरे काम में गायनिकोलॉजिस्ट टांग नहीं अड़ाएगी, क्योंकि मैं उसको, हर पेशेंट को ये समझा के कहता कि देखो, T4 अपर लिमिट ऑफ नॉर्मल का 1.5 गुना होता है, और ये मुझे रखना है। कृपया इस पे गायनिकोलॉजिस्ट से राय ना लें। वो कहेंगी दवा ज्यादा हो गई, कम करो। मैं कहूंगा ना, दवा अभी एडिक्वेट है। बल्कि 5 to 12 में अगर पेशेंट हाइपोथायराइड है, हम थायरोक्सिन दे रहे हैं, किसी पेशेंट का 10-11 TS अगर T4 होता है, मैं कहता हूं डोज बढ़ाओ, क्योंकि मुझे 17-18 तक ले जाना है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। और वो गायनिकोलॉजिस्ट कहती नहीं नहीं नहीं, तो ठीक है, इस पर क्यों डोज बढ़ाई जा रही है? तो ये पेशेंट को हमें समझाना पड़ता है
कि जैसे यहाँ ग्रेव्स की बात है, ग्रेव्स में तो एक काम और भी होता है। प्रेगनेंसी में ग्रेव्स डिजीज क्या है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। और प्रेगनेंसी में इम्प्रूव कर जाता एस्ट्रोजन जितना हाई होता है वो इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर को सप्रेस कर देता है। है। हाँ, तो जो इम्प्रूव कर देता माइल्ड ग्रेव्स के केसेस हैं, माइल्ड केसेस तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में रेमिशन में चले जाते हैं। है। यस, वेरी ट्रू। तो जितनी डोज थायरोक्सिन में हम क्या कह रहे हैं, पेशेंट हाइपोथायराइड है, थायरोक्सिन ले रहा था, प्रेग्नेंट हुआ, डोज बढ़ाओ। 25 to 30% डोज हमें तुरंत कंसेप्शन पे ही बढ़ा देनी चाहिए। आज खबर आई यूपीटी पॉजिटिव, कल से बढ़ा दो। लेकिन ग्रेव्स डिजीज का केस है, पहले से एंटीथायराइड ड्रग ले रहा था, कंसीव किया, हम कहते हैं अरे डोज वही रखनी है या डोज घटानी है? क्योंकि यहां पे तो इम्यूनोसप्रेशन के कारण से ग्रेव्स डिजीज थोड़ा सप्रेशन में जाएगी, थोड़ा रेमिशन में जाएगी। डोज रिक्वायरमेंट पहले हम कह रहे थे कि चलो 5 लोअर लिमिट है T4 की, 6-7 है तो चलेगा। अब प्रेगनेंसी में नहीं चलेगा, प्रेगनेंसी में तो हमें अपर हाफ पे रखना है। तो यूजुअली ग्रेव्स डिजीज के पेशेंट में एंटीथायराइड ड्रग चल रही है, वो हमें कंसेप्शन के बाद घटानी होती है। अगर 5-10 मिलीग्राम पे, 7.5 मिलीग्राम पे कोई लेडी कंट्रोल्ड है तो उसमें तो हम बंद भी करनी पड़ती है हमें, क्योंकि हो सकता है वो रेमिशन में चली गई है। जी डॉक्टर चंदन, आपका कोई कमेंट? Sir, I want to thank you for arranging this beautiful seminar and Dr. Pankaj Agarwal for this his lucid talk. I've got, sir, one query regarding subclinical thyrotoxicosis. When to treat them? Because we often do get patients with normal T3, T4 and very less TSH. So when to treat them then? treating subclinical disorder is always a dilemma for treating physician, whether it is subclinical hypothyroidism or subclinical toxicosis. Now, there are phases of life when we need to evaluate our patient in the light of his or her age group and general condition. I always say that thyroxine is most important in the earlier ages of life, and as age advances, thyroid hormones they don't remain that much significant for everything. So we need to go slow for hypothyroidism with aging population. So there is a dictum that age divided by 10 should be the upper limit of TSH. At the age of 80 years, 8 TSH should be considered as normal, and we should not try to normalize that. So please refrain from increasing thyroxine tablet in hypothyroidism after the age of 50. Keep your targets high. TSH 5, 6, 7, 8 would be better for that individual, and probably it may increase longevity. Normalizing TSH or taking it to 2.5 or 1.5 or 1 in these ages may be detrimental. So subclinical hypothyroidism should be aggressively treated in early ages of life and during pregnancy, not later on. On the contrary, subclinical thyrotoxicosis should be treated aggressively in elderly, because thyroid hormone in elderly may precipitate cardiac disorder. So not only CAD, MI, but also CHF, atrial fibrillation. Then it may it actually increases osteopenia, and osteoporosis may lead to fracture. So there are so many disorders which will not be suitable for elderly population. So subclinical thyrotoxicosis in elderly should better be treated with mild dose of antithyroid drug. And remember, in these cases, not T4 was already normal. So how can we titrate? And there many times patient they say, doctor TSH normal था और तुम T4 कराते हो बार बार. तो TSH abnormal, we have discussed this thing that TSH was abnormal, but TSH takes a long time. So our target remains, T4 is already normal, but our target remains to keep this TSH in the range that it does not fall below normal. So giving antithyroid drug in such a doses
that it can maintain that T4 in at least lower half of normal range. If it is 5 to 12, then keep it somewhere between 5 to 8, 5 to 9, something like that. It should not fall below normal. So again, it may be difficult to explain patient कि डॉक्टर साहब मेरा TSH तो आप करा नहीं रहे हो, लेकिन we can titrate our therapy on the basis of that, and it is difficult. Many a times, many patients they continue to remain in low TSH despite being on the low doses of thyroxine, and their T4 is on the lower limit. It's difficult to say what should be done in these circumstances. Dr. Akash, can you see the chat box if any question left? सर एक मेरा भी क्वेश्चन है अच्छा कि ये T3 सप्लीमेंटेशन आप कब देते हैं? ये बचा हुआ था ये T3 टाइम पे ये नोवो के स्पॉन्सर, अगर एबर्ट का स्पॉन्सर सेशन है तो उसमें अलग बोला जाता। आज खोल के दिल की ऐसा बात पढ़ा है कि अगर आपका थायरॉक्सिन का डोज 150 के ऊपर जा रहा है जी, तो आप उसको रिडक्शन करके T3 आप सप्लीमेंट कर सकते हैं। मैं दिस इज नॉट अबाउट स्पॉन्सर्ड, ये मैंने काफी जो मेटाबॉलिक एक्सपर्ट्स हैं उनका कैसा कहना है, बिकॉज आई एम वेरी एविड लिसनर टू मेटाबॉलिक एक्सपर्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो उनका ये कहना है कि ये भी सिलेक्टिवली सप्लीमेंट होना चाहिए। बिल्कुल सही। ये जो बात है, T3 का रोल बहुत प्रॉब्लमेटिक है, उसको डिस्कस करना और उसको बिल्कुल कहना कि जो मैं कह रहा हूँ सही है या जो मैं पेशेंट को जिसको दे रहा हूँ वो सही है। T3 जो सबसे अच्छा जो T3 का जो रोल है वो ठीक है, मिक्सिडमा कोमा है, मिक्सिडमा जो हम लोग को अक्सर दिखता ही नहीं है, तो ऐसे केसेस में T3 देखिए हम थोड़ा रैपिड रिवर्सल ले सकते हैं, वो एक बहुत एथिकल और जस्टिफाइड इसका यूज है। नंबर 2, ये देखा जाता है कि जो एक्यूट डिसऑर्डर्स हैं हार्ट के, MI और CAD की ACS टाइप की कंडीशंस, उन कंडीशंस में हमारा टेम्पररी T4 T3 कन्वर्जन कम हो जाता है। तो जो सिक यूथराइड सिंड्रोम कहते हैं, नॉन थायराइड इलनेस जिनको कहते हैं, उनकी जो एक्यूट फेज होती है उसमें T4 से T3 का कन्वर्जन कम हो जाता है। तो T3 इज द एक्टिव हार्मोन। जब T3 नहीं मिलता है तो ऐसे केसेस में देखा जाता है कि T4 लेवल अगर लोअर हाफ ऑफ नॉर्मल में हो, लोअर साइड में हो, तो पेशेंट की मॉर्टेलिटी बढ़ जाती है। तो एक्यूट केसेस में T4 लो नॉर्मल TSH इज अ बैड प्रोग्नोस्टिक मार्कर। ऐसे केसेस में हमको T3 उस वक्त देख के हम उस पेशेंट को थोड़ा बेहतर बना सकते हैं, लेकिन T3 देने पे ये ध्यान रखना है कि उसमें टैकियार्डिमियास के चांसेस बहुत होंगे, वहां पे वैसी डेट्रीमेंटल स्टेज है। नंबर 3 जो इसकी सिचुएशन आती है वो है सिकेट्रिकल इलनेस में। सिकेट्रिकल इलनेसेस में भी ये देखा जाता है कि जो T3 शायद ज्यादा इंपॉर्टेंट है T4 से। अब ये कई एजम्पशंस हैं, कोई इस पे बहुत बढ़िया अभी तक अनडिस्प्यूटेड रिव्यूज या आर्टिकल्स या स्टडीज नहीं है, तो उनमें भी देखा गया जो नॉन रिस्पॉन्डिंग केस है। अब सिकेट्रिकल पेशेंट में तो हम कह रहे हैं कि थायरोक्सिन का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तुम अभी वेलबींग फील नहीं हो रही, पता नहीं वो वेलबींग थायरोक्सिन के कारण फील नहीं हो रही या तुम्हारी बेसिक डिसऑर्डर के कारण नहीं फील हो रही, लेकिन वहां पे कई रिपोर्ट्स हैं कि सप्लीमेंटिंग T3 कुड बी बेनिफिशियल। अब इसके बाद जितने भी इंडिकेशंस हैं T3 के, सब थोड़े से हमारे अपने अपने एजम्पशंस पे, अपने अपने एक्सपीरियंसेस पे आधारित हैं। मेरा रोल मैंने बहुत कम केसेस में फील इसको यूज किया है, लेकिन जो आपने कहा डोज ज्यादा होने पे और पेशेंट अगर उसमें हमें साइंस ऑफ हाइपोथायराइडिज्म मिल रहे हैं, उस पर भी हम अगर T3 यूज करें तो ये एक संभावना हो सकती है जहां पे हम यूज कर सकते हैं। बस हमें एक ही चीज का ध्यान रखना है, T3 की हाफ लाइफ बहुत कम होती है, तो हमें उसको ट्वाइस अ डे या थ्राइस अ डे देना पड़ता है। नंबर 1, उससे T3 के लेवल फ्लक्चुएट बहुत करते हैं, तो मूड की वैक्सिंग वेनिंग, पल्स रेट की और BP की, इनकी उससे फ्लक्चुएट करती है। तो कुछ केसेस में जिसमें मैंने ऐसे में जो आप कह रहे हैं ट्राई किया है, मॉर्निंग आवर्स में उसको T3 की 1 डोज दी और बाकी T4 के ऊपर चलने दिया। ये कुछ हमने ट्रायल किया। आई डोंट नो वेदर आई वाज करेक्ट इन दोस केसेस और नॉट,
कि कम से कम जो एक्टिव आवर्स ऑफ द डे हैं उसमें हम उसको थोड़ा एक्टिव रख लें और शायद वहां पे हमारा काम चल जाए। लेकिन कई केसेस जिनको हाई डोज रिक्वायरमेंट होती है वो वास्तव में नंबर 1 नॉन कॉम्प्लायंस, नंबर 2 इनकरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन, कि वो खाता है या खाती है उसके बाद विद इन एन आवर वो चाय नाश्ता हो जाता है। नंबर 3 हम लोग पीपीआई बहुत यूज करते हैं, बहुत ज्यादा, और पीपीआईज हमें सोचना पड़ेगा क्या इतने इंपॉर्टेंट हैं पेशेंट के लिए। पेशेंट जरा सी जलन कही हमने पीपीआई, और पीपीआई कब? खाली पेट। तो जब हम थायरोक्सिन दे रहे हैं और पीपीआई दे रहे हैं, थायरोक्सिन का एब्जॉर्प्शन एसिडिक पीएच में तो उसका एब्जॉर्प्शन कम कर देता है। तो पीपीआई अगर हम देना है तो कम से कम थायरोक्सिन के 2 घंटे बाद दें। नंबर 4 कैल्शियम, सोया प्रोडक्ट, सब प्रोटीन सप्लीमेंट और आयरन, ये वाले जो चीजें ये भी कम से कम 4 घंटे तक ना हो थायरोक्सिन के, जिससे वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब हो जाए। यह जब हम नॉन कंप्लायंस और इम्प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन, इम्प्रॉपर एब्जॉर्प्शन, जब हम इनको रूल आउट कर लें तब हमको ये वास्तव में सोचना चाहिए कि हाँ पेशेंट को वास्तव में हाई थायराइड थायरोक्सिन की इंपॉर्टेंस है, आवश्यकता है, रिक्वायरमेंट। ग्रेट। सो मेरे आकाश, मेरे ख्याल से जितने भी क्वेश्चंस चैट बॉक्स में व्यूअर्स के हैं लगभग हम लोगों ने सबको डिस्कस कर लिया है राइट राइट। ऑलमोस्ट। केवल एक अट्रियल फिब्रिलेशन वाला एक कोई क्वेश्चन है कि व्हाट इज द ऑप्टिमल मैनेजमेंट स्टडी फॉर अट्रियल फिब्रिलेशन सेकेंडरी टू थायरोटॉक्सिकोसिस। इस पे सर कुछ बोलना है? हाँ सर, बड़ी ये तो आप एक्सपर्ट हैं इसके, हम क्या बोलेंगे। नहीं लेकिन ठीक है सर। लेकिन नंबर 1 हम थायरोटॉक्सिकोसिस नहीं को बोलिए मैनेज सर। करें थोड़ा सा अर्ली, और नंबर 2 ऐसे केसेस में फिर रूल आता है कि वहां पे हम प्रोप्रानोल, वहां पे हम डिल्टियाजियम, वहां पे हम अगर नॉन रिस्पॉन्डिंग केसेस हो तो इवन ये जो एमाइडोरोन, इन सब की चीजों की आवश्यकता पड़ सकती है। और जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर्स को साथ साथ नहीं देना, ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो प्रेसिपिटस हमारा एबी नोडल ब्लॉकेट कर सकते हैं। यह 2-3 चीजों का हम वहां पे जरूर ध्यान रखें। वहां पे एट्रियल फिब्रिलेशन बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट देन इवन थायरोटॉक्सिकोसिस। लेकिन थायरोटॉक्सिकोसिस जब हम ट्रीट करेंगे प्रॉपरली और थोड़ा सा रैपिडली, यहाँ पे हमें हाई डोज रेजिमेन को सेलेक्ट करना होगा, जिससे हम अर्ली रिस्पॉन्स ले सकें। या तो मेरे ख्याल से सर एक आज का डिस्कशन बहुत ही अच्छा रहा। तो आकाश, आप सबसे टेक होम मैसेज हमारे मॉडरेटर से भी लें और धन्यवाद ज्ञापित करें। या आकाश, पहले या पहले आप सबसे टेक होम मैसेज ले लें। जी, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर पंकज अग्रवाल से कहूंगा कि वो एक संक्षिप्त टेक होम मैसेज दे दें जितने लोग सुन रहे हैं उनके लिए। इतने लंबे देने के बाद भी तो इसका बोलते हैं क्लिनिकल पल्स। तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु तो यही है कि जो डायग्नोसिस है उसमें हमें डिस्टिंग्विश करना है कि थायराइडाइटिस, जो कि बहुत कॉमन है, थायराइडाइटिस है या ग्रेव्स है। तो यह बहुत आवश्यक है, वहां पे हम ध्यान दें। नंबर 2, आराम से तसल्ली से चलना है, बहुत हड़बड़ी नहीं करना है। 10-10 दिन, 15-15 दिन पे थायराइड फंक्शंस नहीं कराना है, और मेजर चेंजेस नहीं करना है ड्रग में, डोजेस में। ये मेजर चेंजेस बहुत खराब होते हैं कि जरा सा देखा हमने पेशेंट का T4 लो किया, हमने एंटी थायराइड ड्रग बंद कर दी, और जहां देखा एंटी थायराइड ड्रग बंद भी की और साथ में थायरोक्सिन भी दे दी है, और फिर 2 महीने बाद देखा अरे ये तो फ्रैंकली टॉक्सिक हो गया, अब हम थायरोक्सिन बंद कर रहे हैं, एंटी थायराइड ड्रग दे रहे हैं। तो थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट की तरह से डोजेस में वेरिएशन करने हैं, और हमें 1 से 1.5 महीना पे आरंभ में, बाद में 2 महीने पे से 3 महीने पे उसको मॉनिटर करते रहना है। यह बहुत आवश्यक है, इसका ध्यान दें जी। आकाश। डॉक्टर अनिल कुशेस, आप कुछ बोले, एक बहुत ही ब्रीफ मैसेज आपका। मेरा मैसेज भी क्या सर, पंकज अग्रवाल सर ने इतना अच्छे से समझाया है सबको। क्लिनिकल पल सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि बहुत जल्दबाजी ना करें, डायग्नोसिस कंफर्म करें, आराम आराम से ट्रीटमेंट करें, और फॉलो अप में हर हफ्ते ना बुलाएं। फॉलो अप शुड बी एटलीस्ट 1 मंथ अपार्ट। और प्रेगनेंसी में
बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही ज्यादा समझदारी से और पेशेंट को एक्सप्लेन करके ट्रीटमेंट देना चाहिए। और Great. सोनोग्राफी डॉक्टर जी इतना जरूरी नहीं है, जब ऐसे एवरी सिंगल पेशेंट इज बीइंग प्रेस्क्राइब सोनोग्राफी, तो उससे बेटर ये है कि स्कैन कराएं। थैंक्स। और पंकज अग्रवाल सर की डॉक्टर किताब सब चंदन लोग पढ़े हैं। सर किताब कहाँ आपकी मिलेगी, भेजिएगा ऑनलाइन अगर पॉसिबल हो तो। सर ये एनके सिंह सर अगर चाहेंगे तो मैं अभी ग्रुप में पोस्ट करवा दूंगा हाँ कर दीजिए कर दीजिए। सर श्योर बिल्कुल श्योर, पोस्ट करवा दीजिए सर, पोस्ट करवा दीजिए। बिल्कुल। Thank you, डॉक्टर sir. चंदन से रिक्वेस्ट है कि वो भी अपना एक ब्रीफ मैसेज दें। So, I want nothing to say when Dr. Pankaj and you stars have told everything about hyperthyroidism. But the one important thing is that we should always try to differentiate between thyroid toxicosis and hyperthyroidism, though these two words are being used interchangeably. I think most of us use thyrotoxicosis rather than hyperthyroidism. At times, we use hyperthyroidism than thyrotoxicosis. And more importantly, treatment during pregnancy. I think I have got lots of patients. I went through lots of patients who were thought to be hyperthyroid during the first trimester. But after this enlightenment from Dr. Pankaj Agarwal, I think I really thank him for this highlighting this point, at least that during first trimester we need not be worried about anything, but just a follow up is very very important. But again, that tussle with the gynecologist is very important. How to convince them that these are normal reports or these are the normal physiological changes that do occur during the first trimester of pregnancy. Thank you. Sir, my wife is a gynecologist, so I'm very sorry, sir. no. It is daily tussle actually. डॉक्टर हितेश प्लीज। डॉक्टर यस हितेश सर। आप सर आई हैव टू मैसेजेस। वन, कि हमें कभी भी है ना थायराइड की जो हम एंटी थायराइड ड्रग देते हैं उसकी डोज एकदम मैक्सिमल डोज में नहीं देनी चाहिए। अधिकतम Yes. पर्चों में हम देखते हैं कि वो 30 मिलीग्राम पे चालू हो जाती है, जबकि हर किसी को इतनी बड़ी डोज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। दूसरा, एक सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज मैं जो सीएम इंडिया के थ्रू देना चाहूंगा कि आजकल सोशल मीडिया की वजह से हमारे देश में रॉक सॉल्ट, सेंधा नमक ये बहुत खाया जा रहा है, Yeah. जो बहुत सारे हाइपोथायराइडिज्म को प्रभावित करता है। जैसे सर ने बोला कि कंप्लायंस में ये भी क्वेश्चन हमें आदत बनानी नहीं चाहिए, क्योंकि आप जब देखेंगे प्रैक्टिस में आपके अधिकतम मरीज सेंधा नमक, रॉक सॉल्ट या वो ऐसे सॉल्ट का यूज करें जिसकी वजह से हाइपोथायराइडिज्म के केसेस बढ़ रहे हैं, चाहे सब क्लिनिकल हो या फिर प्रेगनेंसी के दौरान हो। थैंक यू। या मेरे ख्याल से आपने या हितेश, बहुत लोग कैबेज के बारे में, गोभी के बारे में भी बहुत करते हैं क्वेश्चन। सर वो होता Yes, है, sir. बट कैबेज के लिए ये है कि अगर आप So बहुत I've been क्वांटिटी में खाएं तब होता है गोइट्रोजेनस, अदरवाइज आप ले सकते हैं थोड़े क्वांटिटी में खा रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि गोली के साथ ही खाएं, कभी भी खाएं बट थोड़ी क्वांटिटी में खाएं। सर यहाँ पे मैं इतना जरूर मेंशन करना चाहूंगा कि रॉक सॉल्ट का क्या इम्पैक्ट है हाइपोथायराइडिज्म में, कितना ज्यादा इम्पैक्ट है। मैंने डॉक्टर हितेश से सीखा। मैं कभी इस चीज पे इतना ध्यान नहीं देता था, लेकिन हर एक केस में खोद खोद के निकाल देते हैं। देखिए सर, इसकी कंट्रोल नहीं हो रही क्योंकि ये रॉक सॉल्ट लेता है या लेती है। yes. तो आई एम थैंकफुल टू हिम। मैं डॉक्टर पंकज अग्रवाल को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस प्लेटफॉर्म पे आके इतनी अच्छी तरह थायराइड के बारे में इतना कुछ बताया, और वो इतने सरल तरीके से और इतने अच्छी तरीके से बताया कि मेरे ख्याल से हमारे जितने श्रोता हैं सबको बहुत ही अच्छी तरह चीजें समझ में आई होंगी, और बिल्कुल भी उनको एक सेकंड भी इंटरेस्ट नहीं लूज हुआ होगा इस वेबिनार में। मैं डॉक्टर अनिल कुशेष जो हमारे सीनियर, उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने आके थैंक यू। यहाँ पे एक्टिवली पार्टिसिपेट किया और कई अच्छे प्रश्न पूछे, अच्छा डिस्कशन इनिशिएट किया। मैं डॉक्टर चंदन और डॉक्टर हितेश को भी थैंक यू सर। इसी तरह धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस सेशन में मॉडरेट किया और डिस्कशन में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई और बहुत ही इसको डिस्कशन को एक ऊंचे स्तर पर लेकर गए। मैं डॉक्टर एनके सिंह और डॉक्टर विजय पटनी को धन्यवाद देता हूँ कि वो हर महीने इस तरह से किसी नए और विशेष टॉपिक पे और विशेष लोगों के साथ ये वेबिनार करते हैं, जिससे कि पूरे सीएमई ग्रुप का ज्ञानवर्धन
बहुत उत्तम तरीके से हो रहा है। मैं जितने भी लोग जो श्रोता है, जो ऑडियंस हैं, जो हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं, उनका धन्यवाद देता हूँ कि वो इतने बड़ी मात्रा में ज्वाइन होते हैं और हमारा जो है उत्साह बढ़ाते हैं, क्योंकि उन्हीं के पार्टिसिपेशन से हमारा ये सब वेबिनार्स चलाने का हमारा जो उत्साह रहता है बना रहता है। मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए यूएसटी को धन्यवाद देता हूँ, उनकी प्लेटफॉर्म सर्विस को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हर बार प्रोवाइड करते हैं कि हमें कोई भी तकनीकी असुविधा नहीं होती है और बहुत ही स्मूथ तरीके से वेबिनार चलता है। अंत में मैं यूएसपी के डॉक्टर आयुषी को हैंड ओवर करता हूँ सेशन कि वो इसको विधिवत तरीके से क्लोज करें। धन्यवाद। Thank you so much, Akash Singh, sir. Thank you so much, Dr. Pankaj Agrawal, sir, for the very amazing talk indeed. Thank you so much, all the expert panels, Dr. N.K. Singh, sir, Dr. Chandan, Dr. Akash, sir, Dr. Hitesh, Dr. Anil Kumar, sir. And we don't have today with us Dr. Bijay Patni, sir, for giving your valuable time to us and having a very engaging discussion. Good night, everybody. Thank you so much. Thank you, sir. Good night. Good night. Yeah, CME team, Shubhratri. thanks for